Okay, a very good afternoon to all of you. Welcome you all to the today's study group discussion meeting on common mistakes in audit reports and financial reporting. So as we come to the last time of closure of accounts and balance sheets, it's always, I think, better to just go through the common mistakes that people usually do, just to learn from others' mistakes, I would say. And we have a very learned faculty with us, CA Abhinav Shajar. He'll be guiding us on the same. To introduce him, I would like to invite C. Rishabh Chaudhary. Good afternoon, everybody. Today, it is my pleasure to introduce one of my fellow colleagues and my good friend Abhinav Chajed. He's a partner at Chajed and Doshi, which is a 59-year-old firm. His experiences are more than 6 years, and he specializes in executing India's implementation, conducting system audits, and conducting comprehensive assessments of ICFR. He has also successfully orchestrated seamless adoption of Ind-AS over 20 companies, optimizing financial reporting and ensuring robust compliances. And he also regularly writes articles on Ind-AS, IFRS, IGAAP, and corporate law. Abhinav, please take the dais and all the very best. Moment. Acha, sorry. Before we start, we would like to welcome you with the moment. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Sir. Thank you. Screen share कर दीजिए माउस एक सेकंड एक बार देखिए Yeah. So thank you, everyone. Thank you. Good afternoon, and thank you, the convener madam and deputy convener madam, for giving me the opportunity to present in front of all of you. So today we'll be discussing about the common errors that we generally come across in the financial reports and in the audit reports as well. जब अपन so coming close to 30th September जनरली क्या होता है इंस्टीट्यूट हर थोड़े सालों के अंदर कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकालता है और उसको रिव्यू करता है कि उसमें क्या क्या मेजरली कॉमन एरर्स थे that they came across, and they come out with a report for that on the financial statements. So today I've tried to compile some of the important ones that were prevalent across many companies and that are present in many companies, and which is something that we should specially take care of since we'll be finalizing many balance sheets now that we are in the month of September. So whenever we talk about financial reporting, Not happening? No, it's not happening.
Yep, sorry. Yeah, so whenever we come across these the financial statements, the first thing that comes to our mind is सबसे जो basic financial statements बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो है accounting standards जो अपन follow करते हैं. So the accounting standards that we follow, firstly ये accounting standards किसको applicable है? सिर्फ corporates को? नहीं, applicable to non-corporates as well. अगर आप financial statements के अंदर अपन अगर accounting standards की बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक पर्टिकुलर डिस्क्लोजर, and if that company has not done that disclosure, what should I do as an auditor then? अगर कोई accounting standard का एक particular चीज का non compliance है, should I qualify the audit report सिर्फ एक disclosure नहीं है उसके लिए? No. So the audit qualification will come only if that particular misstatement is material, or else it won't be qualified. So अभी अगर मैं एज एन ऑडिटर में उस चीज को अभी कहाँ पे रिपोर्ट करूं, मैं उसको जाने दूं वो छोटी सी चीज है इसके लिए? नो. मैं जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके अंदर एक सेक्शन आता है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स करके. उसके अंदर देयर इज वन स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट. सो मैं भले ही ऑडिट रिपोर्ट मेरी क्वालिफाइड नहीं होगी, बट मैं वहां पे नीचे मेरे अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स वाले सेक्शन के अंदर आई शुड गिव अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट आर दीज आर द थिंग्स दैट द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड, और दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड. या चलिए ठीक. Then are these accounting standards applicable to non-corporates as well? Yes. क्या same accounting standards है? Technically no, because they more or less they both are the same. But accounting standards are issued by ICI as well, and they are notified by the Companies Act as well. So जो accounting standard जो ICI के issued है, those accounting standards are applicable to non-corporate entities. But whereas जो accounting standards जो companies accounting standard rules के part form करते हैं, those accounting standards would be applicable to only corporates. So there's hardly any difference between the two. They both are very similar, but this is how it is. So apart from accounting standards, now accounting standards are also of two types. अगर मैं बात करता हूँ Ind AS के accounting standards. So in another major error that was obvious कि काफी सारी companies में despite Ind AS is applicable, people have missed out applying the Ind AS. So Ind AS is applicable when any company's net worth is more than 250 crores. So we should always at every year and we should always check if previous year के अंदर company का net worth 250 crores exceed हुआ था या नहीं हुआ था. Coming to accounting standards applicable to non-corporates, firstly, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अपन बात करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें आती है. मैं जब सेगमेंट रिपोर्टिंग आ जाता है, कैश फ्लो रिपोर्टिंग आता है, मेरा अर्निंग्स पर शेयर आता है, काफी सारी चीज आती है. सो शुड एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बी एप्लीकेबल टू एवरी साइज ऑफ एंटिटी? एक कोई छोटा सा प्रोप्राइटर है, उसको मैं कैश फ्लो रिपोर्टिंग या सेगमेंट रिपोर्टिंग लगा दूं, उसके मतलब कुछ टर्नओवर ही हार्डली कुछ है, उसको मैं अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग लगा दूंगा तो इट वोंट रियली मेक एनी डिफरेंस. मतलब उसका कोई कॉस्ट और बेनिफिट कुछ होगा नहीं, जितना कॉस्ट है उसके साथ बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा. So ICI in the year of commencing from 2020 had bifurcated these companies into 4 levels: level 1, level 2, level 3 and level 4. Earlier these used to be 3 levels only. ये बाद में अभी 2020 onward star level में bifurcate किया है. और उसका limit to keep in line with जो अपना MSME का जो limit होता है 250 crores of turnover and 50 crores of borrowing. तो ये दोनों चीजों को in line रखने के लिए they have bifurcated it basis these numbers. So 250 crores और 50 crores का अगर होगा तो लार्ज एंटिटी है, तो भले ही वो नॉन कॉर्पोरेट है, बट उसको ऑलमोस्ट सारे के सारे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे जो एक कॉर्पोरेट को एप्लीकेबल होता है. और सॉरी ईदर ऑफ द टू. या अगर कुछ भी अगर एक एनी ऑफ द कंडीशन अगर हो जाता है तो या दे हैव टू. या कमिंग टू फिर बाद में अगर मीडियम एंटिटी के लिए 50 to 250, 10 to 50, स्मॉल के लिए 10 to 50 and 2 to 10 when केस ऑफ बोरिंग. एंड द माइक्रो एंटिटीज जो सबसे छोटे अगर कुछ प्रोप्राइटर्स हुए, पार्टनरशिप फर्म्स हुए जिनका टर्नओवर लेस देन 10 crores है और बोरोइंग्स भी लेस देन 2 crores है, सो फॉर देम a lot of benefits are available. अगर मैं कुछ बेनिफिट्स की बात करूं तो मेजर एक बेनिफिट होता है जो लेवल 2 से लेके 4 को अवेलेबल होता है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का, कि उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अप्लाई नहीं करता है. देन सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं होता है, कंसोलिडेशन के अंदर बेनिफिट है. ईपीएस तो किसी को भी नॉन कॉर्पोरेट है तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल ही नहीं होता है. नाउ इसमें अभी एक काफी लोगों का डाउट आता है. मैं फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर के अंदर मैं लेवल 3 था, मेरा 11 crores का टर्नओवर था.
अब मेरा ये साल के अंदर मेरा एंटिटी शिफ्ट हो गया, मैं 9.5 करोड़ कर दिया मैंने। मैं बॉर्डर के वहां पे रहता हूँ, या भले ही आप समझिए मैं लेवल 2 के अंदर था, मैं 50 करोड़ के बॉर्डर के वहां पे मेरा टर्नओवर रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। सो अगर मेरा प्रीवियस ईयर के अंदर मैं लेवल 3 था, तो मैं, और अगले साल में अभी लेवल 4 हो गया, क्या मैं लेवल 4 के एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मुझे कंटिन्यूसली अगर मैं कभी भी चेंज कर रहा हूँ, मैं अपना लेवल अगर मेरा नीचे आ रहा है, तो मुझे 2 साल के लिए वो पीरियड मेंटेन करना है कि मुझे 2 साल के लिए जो पहले मेरा जो एप्लीकेबल हो रहा था, आई स्टिल हैव टू कंटिन्यू विद दोज एप्लीकेबिलिटीज ओनली। अब एक और एक चीज, मैं अभी लेवल 4 के अंदर आ गया, क्या मैं डायरेक्टली अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर जो लेवल 4 को एप्लीकेबल होता है मैं डायरेक्टली वो बना देता हूँ, उसका कहीं पे और कुछ भी नहीं करता हूँ? इज दैट इनफ? नहीं। मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आई ऑलवेज हैव टू गिव दिस डिस्क्लोजर कि मैं कौन से लेवल में फॉल कर रहा हूँ, एंड मैंने ये लेवल को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं, मैंने वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई अप्लाइड टू माय एंटिटी। नाउ कमिंग टू कंपनीज, अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो कंपनीज के अंदर अभी कंपनीज के लिए भी जस्टिफाइबल नहीं है कि क्या भले ही कंपनी अगर 2 करोड़ का टर्नओवर करती है तो उसको भी मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर दूं, वो भी कहीं पे जस्टिफाइड नहीं है। Obviously, it's a corporate entity, so the amount of disclosures that should be applicable to them will be much more than a non-corporate entity. तो इनके कंपनीज एक्ट के अंदर बेसिकली 2 सिंपल बाइफर्केशन आते हैं, एक होता है एसएमसी, दैट इज स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, और एक होता है अदर देन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। सो जब मैं स्मॉल एंड मीडियम कंपनी की बात करूं, 250 करोड़ और 50 करोड़, अगेन इन लाइंस विद द एमएसएमई का जो लिमिट होता है, एंड द सेम लॉजिक विल अप्लाई टू देम आल्सो कि 2 इयर्स का जो वेट पीरियड जो अपन नॉन कॉर्पोरेट में बात कर रहे थे कि अगर नीचे, अगर मैं डाउन, पहले साल के अंदर मैं एसएमसी नहीं था, ये साल में मैं एसएमसी हूँ, फिर भी मुझे 2 साल के लिए वो कंटिन्यूअसली आई हैव टू अप्लाई कि एज इफ मैं एसएमसी नहीं हूँ, एंड इफ आई कंटिन्यू टू बी इन अदर एसएमसी फॉर 2 इयर्स, देन आई कैन क्लेम द एग्जम्पशंस अवेलेबल टू एन एसएमसी। Again, even in this case, this disclosure is mandatory. अगर आप disclosure नहीं करते और आप वो accounting standards, basically the users of financial statement should know that you have availed those exemptions that are available to a small and medium company. So even in these case, majorly cash flow and segment reporting का benefit मिलता है, and apart from that काफी सारे दूसरे accounting standards के अंदर कुछ disclosures के benefit मिलते हैं, जो अगर वो कुछ certain जैसे leases के case के अंदर हो गया, we are allowed to not to make certain disclosures, or so. कमिंग टू मेजर पॉइंट्स, जो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो मेजर काफी सारी गलतियां ऑब्जर्व होती है। एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को सबको पता होगा, एक पैरा होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर का पैरा। इसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन है। सबसे पहले कब एम्फेसिस ऑफ, एज एन ऑडिटर मेरा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, बट कितनी बार while doing the audit we come across certain things जो अपने को लगता है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नो, मतलब वो उतने मटेरियल नहीं है कि मैं उसको क्वालिफाई कर दूं ऑडिट रिपोर्ट, बट मैं फिर भी चाहता हूँ कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये इतना मटेरियल एक इवेंट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोविड वाले टाइम में जब इतना अनसर्टेनिटी था, तो सबने कोविड के लिए एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर का पैरा डालते थे सारी कंपनी, तो दैट वाज द जनरल पैरा। बट स्टिल इवन इन केस ऑफ ऑडिट काफी सारी चीजें हो सकती है जो आप उसके ड्यूरिंग द ऑडिट आप देखते हो, तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो चीजें जो हाईलाइट करनी हो वो आप हाईलाइट करोगे बाय द वे ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर। Now, another major confusion is कि when should emphasis of matter be used and when should other matter be used? So emphasis of matter should be used only in those cases जहाँ पे वो चीज कोई जो पर्टिकुलर आप जो चीज डिस्क्लोज आप यूजर्स को बताना चाहते हो वो चीज ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज्ड है, मैनेजमेंट ने वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दी और आपको वो चीज को सिर्फ एम्फेसाइज करना है, तब आप वो चीज को एम्फेसिस ऑफ मैटर में डालोगे। इन अदर केसेस आप वो सारी चीजों को अदर मैटर्स के नाम पे डालोगे। फॉर एग्जांपल कंपनी, आपने कंपनी को बोला कि ये पर्टिकुलर डिस्क्लोजर करो, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, कंपनी ने बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं करना ये डिस्क्लोजर, तो आप फिर बाद में एम्फेसिस ऑफ मैटर में आप वो चीज को फिर आप बाय वे ऑफ अदर मैटर्स का आपका यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताओगे। whenever आप emphasis of matter बताओगे, you should always give a reference to that particular note in the financial statements. So to summarize, emphasis of matter वो चीज emphasize करेगा जो financial statement में already disclosed है, and other matter वो चीजें आप emphasize करोगे जो चीज financial statement में disclosed नहीं है बट आप चाहते हो users of financial statements को पता है। एक और एक अभी कंफ्यूजन आता है कि क्या emphasis of matter और other matter दोनों हो सकते हैं एक रिपोर्ट के अंदर? ऑब्वियसली हो सकते हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर, अगर 2 मैटर्स आपको डिस्क्लोज एम्फेसाइज करना था, कंपनी ने एक चीज डिस्क्लोज कर दी, एक दूसरी चीज के लिए कंपनी नहीं कर रहा है, तो आप एक चीज को एम्फेसिस ऑफ मैटर में डाल सकते हैं, एक चीज को अदर मैटर में।
कुछ कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कंपनीज के डिस्क्लोज करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। टेक्निकली कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एज एन ऑडिटर अपन वो चीजें बताते हैं। सो जब अपन वो चीज, तो वो सारी चीजें तो अदर मैटर में डालोगे तब होगा, क्योंकि आपको एम्फेसिस मैटर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इट इज नॉट रिक्वायर्ड। विल कम टू दोस। एक और एक कॉमन ट्रेंड देखा गया है जो काफी लोगों को लगता है कि क्या मैं मुझे एक ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करनी है और मैं उसके बदले लेकिन एम्फेसिस ऑफ मैटर डाल दूंगा, विल दैट वर्क? मैं कैन आई टेक द सेफगार्ड ऑफ सेइंग दैट मैंने एम्फेसिस ऑफ मैटर डाल दिया था और क्या मैं क्वालिफाई नहीं किया? ऑब्वियसली नॉट। जो चीज, इफ एनीथिंग इज मटेरियल, दैट थिंग हैज टू बी क्वालिफाइड। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करके एम्फेसिस ऑफ मैटर में डाल रहे हो, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। आपकी लायबिलिटी जितनी है उतनी वो रहनी वाली। नाउ एक और एक प्रॉब्लम आती है जो काफी सारों को कंफ्यूजन होता है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में प्लेसमेंट किधर करना है। क्योंकि जो इलस्ट्रेटिव ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, इलस्ट्रेटिव ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बोलता है कि क्या SA 700 जो मेरा फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट का देता है, उसके अंदर कहीं पे भी एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर लिखा हुआ नहीं होता है। एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर इज डेल्ट विद बाय SA 705, जो मेरा एक सेपरेट सेक्शन है। तो उसके अंदर बोलता है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर शुड ऑलवेज फॉर्म पार्ट आफ्टर माय ओपिनियन पैरा। मेरा ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन का जो पैरा होता है, उसके बाद में हमेशा एम्फेसिस ऑफ मैटर का पैरा आना चाहिए। रिगार्डिंग अदर मैटर्स शुड ऑलवेज फॉलो एम्फेसिस ऑफ मैटर का। अदर मैटर ऊपर नहीं होगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर भी हमेशा ऊपर होगा। अदर मैटर के अंदर कुछ कुछ केसेस के अंदर अदर मैटर कैन बी प्लेस्ड इवन नियर द रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी का जो सेक्शन होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। की अगर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लग रहा है, तो आप अदर मैटर में उसको ऑडिट रिपोर्ट में ऊपर की तरफ प्लेस करोगे, अदरवाइज आप उसको नीचे की तरफ प्लेस करोगे। अगर कुछ कुछ चीजें या ऐसे भी हो सकता है कि अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स के सेक्शन के अंदर अपन ने जो चीजें लिखी है, मे बी उसके रिलेटेड कुछ चीजों का अदर मैटर्स का पैरा आपने डाला है, तो देन यू कैन डिस्क्लोज इट इन अदर मैटर्स का पैरा वहां पे इन दैट सेक्शन आल्सो। Now some common emphasis of matter and other matter paras that should be there in financial statement, but majority of the people miss out. फर्स्ट थिंग, सर अपने में काफी लोग मिस आउट करते होंगे कि जब अपन फॉर एग्जांपल कोई कंपनी के नए ऑडिटर्स अपॉइंट करें, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रीवियस पीरियड के भी फिगर्स होते हैं। अपन जब ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, भले ही अपन लिखते हैं कि फॉर द ईयर एंडेड March 31, 23, बट अगेन जो फाइनेंशियल्स पे आपने जिस पे साइन किया, उसके अंदर आपने March 31, 22 के भी फिगर्स है, एंड आप वहाँ पे हो सकता है कि आप तभी ऑडिटर ना हो March 22 के अंदर। So in that case, we should always add another matter para stating that the financial statements of the company for the year ended March 22 were audited by another auditor, और उसने क्या फॉर्म ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया। हो सकता है प्रीवियस ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हो वो प्रीवियस ईयर के नंबर्स पे, बट तो आपको वो चीज वहाँ पे अपने ऑडिट रिपोर्ट में अदर मैटर के बारे में हमेशा आनी चाहिए कि ये चीज ऐसा हुआ था प्रीवियस ईयर के अंदर, एंड कौन से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का डेट क्या था, यू विल गिव अ रेफरेंस टू दैट आल्सो। अभी इसके अंदर एक और एक डाउट आता है, फॉर एग्जांपल एनबीएफसीज में आज के तारीख में जॉइंट ऑडिट मैंडेटरी है, इंश्योरेंस हो गए, अपने बैंक्स वगैरह के अंदर भी जॉइंट ऑडिट मैंडेटरी है। सो इन दोस केसेस हो सकता है कि एक ऑडिटर था पहले, तब आप कैसे इस चीज को डिस्क्लोज करोगे? इवन एट दैट टाइम आपको ये लिखना होगा कि वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर हैज एक्सप्रेस्ड एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बेसिकली आपको अपनी लायबिलिटी कहीं ना कहीं पे तो आपको यू हैव टू ड्रॉ लाइन कि नहीं, मेरी लायबिलिटी यहाँ तक थी, मैंने प्रीवियस ईयर के ओपनिंग फिगर्स पे ऑब्वियसली वी आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स, जो दैट इज अज्यूम कि वो आपने की है, बट मैंने प्रीवियस ईयर के नंबर्स ऑडिट नहीं किए। तो ये चीज मुझे हमेशा मेरे अदर मैटर के थ्रू डिस्क्लोज करनी चाहिए। फिर एक और एक पॉइंट आता है रिगार्डिंग कंसोलिडेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर। जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी के 10 सब्सिडरीज है। अभी हो सकता है हर 10 सब्सिडरी का तो मैंने ऑडिट किया नहीं होगा, कुछ कुछ सब्सिडरीज मस्ट हैव बीन ऑडिटेड बाय सम अदर ऑडिटर, बट मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मेरे बनते हैं उसमें तो मैं हमेशा क्या नंबर्स तो मेरे कंसोलिडेटेड है, मैं सब्सिडरी के नंबर्स भी है, सो आई एम रिलाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑडिटर। सो इवन दैट पैरा शुड बी देयर कि मैंने टू दिस एक्सटेंट मेरा जो एसेट साइज है उसके अंदर से फॉर एग्जांपल मैंने 100 करोड़ का है, तो आई विल राइट फॉर एग्जांपल कि 20 करोड़ का एसेट साइज हैज बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, 10 करोड़ का रेवेन्यू हैज बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, इतना कैश फ्लो हैज बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। आई हैव टू क्लियरली स्टेट कि इतने पोर्शन में से इतना पोर्शन, फॉर एग्जांपल इट इज फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड कि इतना पोर्शन वाज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। अभी एक और एक चीज होती है, कंपनीज लाइक फॉर एग्जांपल रिलायंस वगैरह हो गए, उनके देयर आर मोर देन 400-500 सब्सिडरीज।
अभी हर सब्सिडरी का ऑडिट हो जाए 20 तारीख तक, वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालते हैं 20 तारीख तक, हर सब्सिडरी का ऑडिट हो जाए 20 तारीख तक, इट इज नॉट पॉसिबल. सो इन दोस केसेस वहाँ पे, और वो कुछ कुछ छोटी सब्सिडरीज होती है, मतलब कुछ भी ट्रांजैक्शंस नहीं है, सो दे आर ट्रीटेड एज इमटेरियल सब्सिडरीज. एक सेबी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मटेरियल सब्सिडरी का. मटेरियल सब्सिडरी को वो लोग डिफाइन करते हैं मोर देन 10% ऑफ मेरा टर्नओवर होगा. तो कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ मटेरियल सब्सिडरी हैज नॉट बीन डिफाइंड, बट कीपिंग इन लाइन विद द सेम थिंग, कुछ कुछ सब्सिडरीज को मैनेजमेंट सर्टिफाइड भी रहती है. तो वो सब्सिडरीज को मैं आई हैव टू सेपरेटली स्टेट इन अ सेपरेट पैरा कि इतनी सब्सिडरीज के फिगर्स वर सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट एंड आई हैव नॉट परफॉर्म्ड एनी प्रोसीजर्स ऑन द सेम. Again, these numbers cannot be material in terms of the consolidated financial statement because in case of figure certified by management, in case of by another auditor, they can be material also. Now, अभी एक कॉमन सिनेरियो जो देखा जाता है, काफी सारी मेरी सब्सिडरीज होती है. फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई फॉरेन कंट्री में एक सब्सिडरी है, मैंने दुबई के अंदर मेरी एक सब्सिडरी है, वो सब्सिडरी IFRS फॉलो करती है, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता हूँ. वो सब्सिडरी ऑडिटेड है, बट वो IFRS के हिसाब से ऑडिटेड है. तो क्या मैं उसको ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर के उसमें लिखूंगा? नहीं, बिकॉज जो नंबर्स जो मैंने कंसोलिडेट किए दे वर नॉट ऑडिटेड. उसके अंदर कुछ आपने कुछ एडजस्टमेंट्स किए जो IFRS टू उसको IGAAP पे लाने के लिए या IFRS टू Ind AS पे लाने के लिए, एंड देन आपने वो नंबर्स कंसोलिडेट किए. सो यू शुड ऑलवेज, तो बहुत सारे नंबर्स भी या तो आप फिगर सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट में डालोगे, बट अगेन अगर फिगर मटेरियल हुआ तो आप फिगर सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट में तो डाल नहीं सकते. तो इन दैट केस आप एक स्पेशल पर्पस एक उनको नीचे सब्सिडरी के ऑडिटर को बोलोगे कि वो जो 2-4 एडजस्टमेंट जो करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, you'll ask them to give a special purpose audit report on that. That is a fit for consolidation report. मैं वो रिपोर्ट के रिलायंस पे I'll consolidate it with my financial statements. अभी एक अनदर काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो मैं स्टैंड अलोन, मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 सब्सिडरी के नंबर्स दिए, स्टैंड अलोन लेवल पे उनका एसेट का नंबर है 10 करोड़ ईच, फॉर एग्जांपल तो 30 करोड़ हो गए, बट मैं उसमें से कुछ 5 करोड़ का जब मैं कंसोलिडेट करता हूँ तो एलिमिनेशन हो जाता है, तो मेरे कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका फिगर 25 करोड़ से दिखता है. तो जब मैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैं नंबर्स क्या लिखूं, 25 करोड़ लिखूं या 30 करोड़ लिखूं? So in that case मुझे 30 करोड़ लिखना. I'll have to always accumulate those figures on standalone basis, जो मेरे सब्सिडरी के standalone basis के फिगर्स थे, क्योंकि हो सकता है मेरा पूरा का पूरा रेवेन्यू ही माइनस हो जाएगा सब्सिडरी का. In that case वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है कि मेरा 500 करोड़ एज अ होल्डिंग कंपनी आई एम डूइंग अ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ एंड आई एम सेलिंग इट टोटली टू माय सब्सिडरी ओनली. तो अब जब वो कंसोल होगा तो सब्सिडरी का टर्नओवर तो पूरा माइनस हो जाएगा. So in that case अगर आप ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे लिखोगे कि रेवेन्यू ऑफ 0 हैज बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, दैट वोंट मेक सेंस. तो आप उसको हमेशा इसीलिए स्टैंड अलोन बेसिस पे यू विल हैव टू accumulate those figures and you'll have to disclose it in your audit report. Now एक गोइंग कंसर्न वाले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर एक स्पेसिफिक एक कुछ कुछ कंपनीज एक पैरा डालती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. So this is a para that the standard on auditing says that you have to put when there is any material uncertainty की कंपनी. दो चीज होती है, एक होता है आपने गोइंग कंसर्न क्वालिफाई कर लिया, आपने इन दिस केस आप गोइंग कंसर्न क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, आप इसमें से ये बोल रहे हो कि कुछ कुछ मटेरियल अनसर्टेनिटीज है जो कोई फ्यूचर इवेंट पे, अनसर्टेनिटीज बेसिकली कोई फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है कि ये कंपनी आगे गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं रहेगी. हो सकता है फॉर एग्जांपल बैंक की फंडिंग मिली तो मे भी कंपनी आगे गोइंग कंसर्न रहेगी वरना नहीं रहेगी, होल्डिंग कंपनी ने और पैसा इंफ्यूज कर दिया तो गोइंग कंसर्न रहेगी वरना नहीं रहेगी. सो दीज आर मटेरियल अनसर्टेनिटीज. सो एज एन ऑडिटर व्हाट शुड आई डू? मैं खाली MRL में लेके रख दूं, दैट इज नॉट एनफ. I have to put it in my audit report also कि there were certain material uncertainties related to going concern and इसके लिए मैंने ये पैरा एक इंसर्ट किया. अब फॉर एग्जांपल एक सब्सिडरी के ऑडिटर ने मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न डाल दिया, एज एन होल्डिंग कंपनी ऑडिटर हाउ शुड आई डील विद इट? नो, आई वोंट पुट दैट पैरा मेरे रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि एज अ ग्रुप तो कोई अनसर्टेनिटी जरूरी नहीं है होगी. वो सब सब्सिडरी कितनी मटेरियल है, अगेन नाउ द क्वेश्चन विल कम टू दैट. अगर वो सब्सिडरी मटेरियल नहीं है तो इवन इफ आई डोंट डू एनीथिंग देन इट्स फाइन, बट अगर वो मटेरियल सब्सिडरी है, मे बी मटेरियल सब्सिडरी अगर अपन सेबी का डेफिनेशन चले तो 10% का टर्नओवर हो गया तो भी मटेरियल सब्सिडरी हो जाएगी. बट अब वो चीज को आप कंसोल लेवल पे आप उसको कैसे दिखाओगे? तो कंसोल लेवल के अंदर अगेन यू कैन पुट अ पैरा ऑफ अदर मैटर
और एम्फेसिस ऑफ मैटर करके आप वो चीज को वापस से कंसोल रिपोर्ट के अंदर भी डिस्क्लोज कर सकते हो। Now, another major section जो काफी लोग मिस आउट कर देते हैं is other information का information. So as an auditor, it is our responsibility to comment on the director's report or other things that are included in the annual report. जो कंपनी annual report publish करती है, उसके अंदर काफी सारी apart from the financial statements and audit report, there are various other things also. So अपन काफी सारी वो चीजें जो मिस आउट कर देते हैं, वो it is our responsibility to read those other information and state कि कुछ भी ऐसा था क्या जो इनकंसिस्टेंट है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर रिपोर्ट में लिख दिया कि क्या हमारा कुछ भी कैपिटल कमिटमेंट कुछ भी नहीं है, मतलब हम एक्सपेंशन के कोई प्लान्स ही नहीं है हमारे, बट जबकि वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है कि कैपिटल कमिटमेंट का अमाउंट इतना ह्यूज दिख रहा है। फिर बाद में वो वहां पे लिख दिया डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर दैट देयर वर नो लीगल केसेस ऑनगोइंग और समथिंग लाइक दैट, बट अपने कंटिंजेंट लायबिलिटी में देयर आर समथिंग। सो अगर कुछ ऐसी मटेरियली अगर ऐसा इनकंसिस्टेंट कोई फैक्ट्स अगर दिखते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, तो इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू रिपोर्ट दोस फैक्ट्स। सर अभी एक मेजर प्रॉब्लम जो अपन फेस करते हैं इसकी 30 सितंबर का फॉर एग्जांपल चल रहा होता है, तो 30 सितंबर तक अभी उनका फॉर एग्जांपल तब तक डायरेक्टर्स रिपोर्ट उनका रेडी नहीं, जो कंपनी का डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोर्ड मीटिंग के दिन पे ही रेडी हो रहा है, और मतलब आप भी तभी आपका ऑडिट रिपोर्ट भी तब तक तो प्लेस होता है ये बोर्ड मीटिंग के लिए। So what will we do in those cases कि उनका डायरेक्टर्स रिपोर्ट रेडी है? So we'll have to speak and specifically state in this case कि on the date of issuing this audit report, that director's report was under preparation, and when we receive that report, we'll read those items, और अगर तभी कुछ मिला तो we'll communicate to the board of directors, that is those charged with governance. And in case अगर आपको तब तक मिल चुकी है, तो in that case we just have to state that we have nothing to report in this regard. Then another major revisions that many of the audit reports were found to be missing were the recent revisions to audit report in terms of ultimate beneficiaries का जो clause add हुआ है. So last year Companies Act के अंदर कुछ amendments हुए थे Rule 11 के अंदर, and कुछ दो clauses add हुए थे. First was regarding ultimate beneficiaries. Firstly, ultimate beneficiaries का clause बोलता क्या? The first, so it has been broken into 3 points. The first point is regarding कि आपको एक मैनेजमेंट से एक representation लेना है कि that no funds have been given in form of any thing, मतलब it can be loan, it can be investments, it can be an advance, कोई भी फॉर्म में मैंने कोई फंड्स कुछ दिए नहीं है किसी और को विद इन इंस्ट्रक्शन की वो पैसे कहीं और यूज होने चाहिए। बेसिकली उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई और है, बस वो एक खाली एक रूटिंग एंटिटी नहीं है करके एक आपको एक मैनेजमेंट से ऐसा रिप्रेजेंटेशन लेना है कि ऐसा कुछ भी मैनेजमेंट ने कोई फंड दिया नहीं। अभी सेकेंड पॉइंट, कंपनी को कोई ऐसा फंड नहीं मिला है कि कंपनी को आगे कहीं और देना, और कंपनी हैज बीन द रूटिंग एंटिटी। तो ये दोनों चीज में उन्होंने बोला है, यहाँ तक था तब तक ठीक था कि ये आपको मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना है, और क्या मतलब अगर कुछ है तो मतलब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। जब तक यहाँ तक था ठीक था क्योंकि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लेने की बात चल रही है। देन दे केम विद द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के अंदर दे स्टेट कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर ऑडिट आपको ऐसा कुछ भी एक भी बार नहीं लगा कि दैट ऐसा इन दोनों में से कोई भी एक इंस्टेंस हुआ है। नाउ द लेवल ऑफ अश्योरेंस के 3 लेवल होते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस। So the level of assurance that they've asked in this is limited assurance, because ये जो wordings जो ये लोग बोलते हैं that nothing has come to our notice that causes us to believe, मतलब मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं जो मुझे ऐसा लगे कि क्या ये है। It is lower than the reasonable assurance या absolute assurance, but again उसमें भी एक कुछ level of end of the day मतलब आप उसमें मतलब you won't be able to take a safeguard कि नहीं मैंने limited assurance ही दिया था। कैसे लगा उसका भी बैकअप मेरे पास होना चाहिए। Exactly. एंड नहीं, अगर मेरे पास अगर कुछ ऐसा इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ही अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे को कोई एक सर्टेन प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो सर्टेन प्रोसीजर्स के केस के अंदर मुझे ऐसा कुछ बाउंड है कि मतलब वो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा, तो उसके बाद में मतलब ऑब्वियसली दैट थिंग आई हैव टू बी आई हैव टू डॉक्यूमेंट, और मुझे वो चीज यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा है। अभी इसके अंदर ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फर्स्टली कि आपको पैसा आपने दिया इन्वेस्टमेंट था लेकिन उसने आगे लोन दिया तो भी वो इसमें कवर होगा। मैंने कोई भी फॉर्म में पैसा गया, कोई भी फॉर्म में पैसा आगे रूट होगा, जरूरी नहीं है कि वो सेम फॉर्म में ही आगे जाना चाहिए। सर एक इंटरेस्टिंग चीज एशियन पेंट्स का अगर आप ऑडिट रिपोर्ट देखोगे तो वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट दे हैव एडेड इज कि द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड
and as disclosed in notes to accounts. आगे ये जो particular notes to accounts का एक reference देते हैं, because ये same चीज management को companies act को schedule 3 के वजह से अपने financial statements में भी report करनी होती है. तो एशियन पेंट्स ने क्या किया, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट का नोट का डिस्क्लोजर ही दे दिया. नाउ इसका एक बेनिफिट ऐसा है कि आप कल को अगर आपके रिप्रेजेंटेशन लेटर में अगर नहीं भी हुआ तो भी आपने एटलीस्ट इवन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर साइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो आपका वहां पे भी जो नोट टू अकाउंट्स में तो आ ही गया है. सो अगेन तो उन्होंने एक उसका ये चीज का वहां पे रेफरेंस दे दिया, व्हिच इज अ गुड थिंग एंड व्हिच कैन बी डन इन मेनी केसेस. Now the second amendment that was done was with regard to dividend ka payment. Whether the dividend payment is in compliance with my section 123 or not. अभी उन्होंने डिविडेंड पेमेंट के अंदर दो चीज का जो क्वेश्चन है उसके अंदर दे हैव आस्क्ड फॉर टू थिंग्स, that whether dividend declared or paid during the previous year was in compliance with my section 123 of Companies Act or not. Section 123 पे अपन आता है. अब अगर मैंने खाली प्रीवियस ईयर के अंदर डिक्लेयर किया था, पे करंट ईयर के अंदर हुआ, इवन इन दैट केस वो मेरे पर्व्यू में आ जाएगा, मुझे तो भी उसके ऊपर कमेंट करना है. मैंने डिक्लेयर उसके भी पहले वाले साल में किया था और पे प्रीवियस ईयर के अंदर किया है, इवन दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, माय ऑडिट रिपोर्ट. एंड another interesting case that has been observed in some companies is, again ये भी एशियन पेंट्स के अंदर ही था, that they have also disclosed कि मैंने जो करंट ईयर का 22-23 का जो मैंने डिविडेंड प्रपोज किया है, जो बेसिकली डिविडेंड प्रपोज किया होगा मैंने मार्च 23 खत्म हो जाने के बाद में करंट ईयर के अंदर, तो वो डिविडेंड जो प्रपोज किया है तो वो उसका जो अमाउंट का जो कैलकुलेशन इवन दैट इज इन कंप्लायंस विद बाय सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट. नाउ व्हाट डज सेक्शन 123 से? सेक्शन 123 ब्रॉडली डिस्कसेस कि मेरा सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या क्या हो सकता है. अब मैंने करंट ईयर का जो मेरा प्रॉफिट था कंपनी का, मैं डिविडेंड दो रास्तों से दे सकता हूँ. एक तो है जो मैंने प्रीवियस ईयर में जितना पैसा कमाया उसमें से दे दूं, या तो है कि मैंने आज तक टोटल जितना पैसा कमाया जो रिजर्व्स है मेरे, उसमें से मैं कोई डिविडेंड दे दूं. सो मैं अपने प्रीवियस ईयर में जितना कमाया उसमें मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, आई कैन गिव एनी अमाउंट फ्रॉम दैट. व्हेन आई डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व्स, in that case there's certain limits prescribed in rule 3 of companies declaration of dividend payment rules. So in this case वो लोग तीन specific condition बोलते हैं जो अपन को meet करनी पड़ेगी अगर अपन को reserve से dividend देना है. तो basically I cannot use dividend as a route to liquidate my company. That is the reason they have put these safeguards कि मैंने इतने सालों में पैसा कमाया, फिर rather than मेरे को कंपनी लिक्विडेट करनी है तो मैं सब कुछ पूरा डिविडेंड के नाम पे कंपनी से बाहर निकाल दे रहा हूँ. मैं वो नहीं कर सकता. So what are these three conditions? The first condition is that my rate of dividend shall not exceed the average rate in the 3 previous years. अब कुछ केस हो सकते हैं कि मैंने पिछले 3 सालों के अंदर डिविडेंड इशू नहीं किया, तो इन दैट केस ये क्लॉज आपको एप्लीकेबल नहीं होगा. सेकंड कंडीशन, that my total amount of dividend shall not exceed मेरा 1/10 of जो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स जो है उसका मेरा 1/10 एक्सीड नहीं होना चाहिए. एंड द थर्ड क्लॉज, that मेरे जो रिजर्व्स है उसका बैलेंस should not fall below 15% of the paid up share capital. So अगर ये तीनों again now ये तीनों कंप्लाई होनी चाहिए. It is not or, it is and. अगर मेरे तीनों अगर इसके हिसाब से फॉर एग्जांपल मैं क्लॉज 2 के हिसाब से मैं 100 करोड़ डिविडेंड दे सकता हूँ और क्लॉज 3 के हिसाब से मैं 50 करोड़ ही दे सकता हूँ, तो मैं मैक्सिमम 50 करोड़ ही दे सकता हूँ. अब एक और एक चीज इसके अंदर, क्या मैं खाली अगर मैंने फॉर एग्जांपल रिजर्व से एक ही साल के अंदर मैं आउट ऑफ प्रॉफिट से भी दे सकता हूँ और आउट ऑफ डिविडेंड रिजर्व से भी दे सकता हूँ? यस, उसमें भी कोई बार नहीं है. लाइक आई कैन फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रीवियस ईयर के अंदर 100 करोड़ के प्रॉफिट थे तो मैंने वो तो एक अमाउंट ले लिया एंड फिर बाकी का अमाउंट जो मुझे और देना था वो मैं अगेन रिजर्व के हिसाब से मैं कैलकुलेट करके आई हैव पेड आउट द बैलेंस टू मी. Calculation will change if company does any buyback of shares. Sorry? During that year, company does any buyback of shares. So this calculation will change. Buyback of shares? Not really, sir, because the amount will again stay the same only. मतलब आपका ये जो टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, जो फॉर एग्जांपल पेड अप शेयर कैपिटल का मेरा 1/10 से ज्यादा नहीं जा सकता या रिजर्व्स मेरा 15% से बढ़, तो मेरा टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. ऑब्वियसली ईच शेयर वाइज मेरा फर्क पड़ जाएगा, बट लेकिन ओवरऑल टोटलिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Now another major revision that has come up with this year's audit report, ये 2 साल से चल रहा था बट उसको पोस्टपोन करते जा रहे थे.
एक अभी कंपनीज एक्ट ने मैंडेट किया है काफी सारी कंपनीज को दैट यू हैव टू मैंडेटरीली योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट यू यूज शुड हैव एन ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल मतलब क्या, मतलब जो भी कंपनी के अंदर अगर कुछ आपने एंट्रीज पास की थी, वो एंट्रीज बाद में एडिट की, वो एंट्रीज किसने पास की थी, वो एंट्रीज बाद में डिलीट की, तो हर एक चीज का एक बैकअप पूरा कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर रहना चाहिए। और वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो बैकअप भी ऐसा होना चाहिए, वो ऑडिट ट्रेल भी ऐसा होना चाहिए कि कंपनी के पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो जाके ऑडिट ट्रेल ऑफ कर दे, कुछ डिलीट कर दे और वापस से ऑडिट ट्रेल ऑन कर दे। वो जो ऑडिट ट्रेल ऑन ऑफ करने का फीचर भी नहीं होना चाहिए। तो ऑडिट ट्रेल जैसे आप देखोगे टैली ERP9 के अंदर ऑडिट ट्रेल तभी भी था, बट लेकिन उसके अंदर वो अभी यू हैड एन ऑप्शन टू टर्न इट ऑफ, बट विद द न्यू वर्जन्स कमिंग अप वो ऑप्शन अभी निकल गया। नाउ इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि फॉर एग्जांपल ये ऑडिट ट्रेल का जो क्लॉज है दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स, बट फिर भी आप देखोगे काफी सारी कंपनीज ने करंट ईयर के अंदर भी एक ऐसा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऐसा लिखा है कि ऐसा ऐसा कंपनी को एप्लीकेबल है एंड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 23। ये चीज अभी क्यों करनी पड़ रही है? बिकॉज जो कंपनीज को एप्लीकेबल है, जो रूल 3(1) ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल्स कंपनीज को एप्लीकेबल था बिकॉज ऑफ दैट, तो उन्होंने वहां पे तो पोस्टपोन कर दिया, बट जो ऑडिटर को रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट था रूल 11G के अंदर दैट हैज नॉट बीन पोस्टपोन। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तो आपको रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसे लिख दो कि नॉट एप्लीकेबल है मार्च 23 के लिए, बट स्टिल आपको ये पैरा ऐड करना पड़ेगा। नाउ अगेन कुछ केसेस के अंदर सर अभी जैसे अभी कोई बड़ी कंपनीज होगी, टैली वगैरह तक है तब तक तो फिर भी ठीक है, बट कोई बड़ी कंपनीज है तो अपन IT ऑडिट एक्सपर्ट तो है नहीं। अब पीछे ऑडिट ट्रेल मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है, मतलब बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इट इज नॉट आवर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। So it is always suggested कि कोई भी बड़ी कंपनीज में we can always ask the company to get a separate IT audit done, या कुछ एक some kind of a separate audit जिसपे एक independent review कि आपके ये audit trails वो functioning properly and they are being maintained properly. SAP और ERP में तो प्रॉब्लम आती है। Ideally नहीं आना चाहिए, नहीं आता, ideally नहीं आता, but sir again as a safeguard कंपनी बोल रही है exactly नहीं as a safeguard, but how will we check it? मतलब अपन कैसे इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। agreed it is there as a part of the system sir, but अपन ये चीज को document कैसे करेंगे? मतलब बियॉन्ड पॉइंट आप वो ऑडिट ट्रेल को आप चेकिंग कैसे करोगे? एग्जैक्टली in the audit team or Exactly. you have a But separate audit they'll have system auditing। agreed sir, but they'll have certain limitations, इसीलिए वो सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट मैं वो ये चीज को सिस्टम ऑडिट के रिपोर्ट के अंदर ही आप एक एज अ सेपरेट स्कोप ऐड करवाने के लिए बोल सकते हो कंपनीज को। Now to sum up, there's audit report के अंदर जो थोड़े बहुत general points again emphasis of matter and other matters were used vice versa. Emphasis of matter required था, मतलब other emphasis of matter दे दिया but reference to notes to accounts दिया ही नहीं। फिर अदर इन्फॉर्मेशन का पैरा काफी सारे ऑडिट रिपोर्ट्स में मिसिंग था, ऑडिट रिपोर्ट के रिसेंट ईयर के रिविजन्स वर नॉट कंसिडर्ड। सर अनदर मेजर थिंग ये अपना जो ऑडिट रिपोर्ट SA700 का जो फॉर्मेट होता है, काफी बार ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा कुछ स्लाइट एज एन ऑडिटर अपन ने अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से कुछ थोड़े बहुत लैंग्वेज के वर्डिंग्स के अंदर कुछ ऑडिटर्स ने चेंज कर दिया, बट सर इट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज आई हैव सी मतलब इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट कि जब CAG का ऑडिट होता है, CAG अपना ऑडिट हो जाता है, उसके अंदर CAG आता है वापस अपना भी ऑडिट, CAG खुद भी ऑडिट करता है, CAG फिर POMs इशू करता है ऑडिटर्स को कि ये एक मेमोरेंडम एक मेमो इशू करता है कि ये पॉइंट्स के अंदर क्या डिस्क्रिपेंसीज उनको मिली थी करके CAG को सेपरेटली। सो कुछ देखा गया कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें ऑब्जर्व की कि एग्जैक्ट इन लाइन नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी मैटर्स के अंदर एक पॉइंट आता है कि वेदर द कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्वेश्चन है रूल 11 के ये क्वेश्चन है कि वेदर द कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट। एज एन ऑडिट आपने वहां पे लिख दिया कि क्या द कंटिंजेंट लायबिलिटी हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्या रेफर नोट करके वैसा ऐसा कुछ डाल दिया, और आपने वहाँ पे बट कंपनी के अंदर उन्होंने कंटिजेंट लायबिलिटी के नोट में जाओगे तो वहाँ पे 0 ही था, बट आपने वो डिस्क्लोज हो गया। क्वेश्चन क्या था कि डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ, कंपनी से क्या पूछता है और आपने वो चीज वहाँ पे लिख दी कि डिस्क्लोज हुआ है, बट उनका कहना ये था कि SA700 के अंदर एक और करके एक वर्डिंग जाता है कि आप या तो ऐसे लिखो और द कंपनी डिड नॉट हैव एनी कंटिजेंट लायबिलिटीज करके वैसे लिखो। दीज आर द टू ऑप्शंस दैट दे गिव यू। सो CAG ने स्पेसिफिकली वो ऑडिटर्स को बोला है कि आप वो अपना ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करो और आप वहां पे ऐसे लिखो कि दैट देयर वर नो कंटिजेंट लायबिलिटीज, इट इज अ डिस्क्रिपेंसी, दे हैव कंसीडर्ड इट एज अ डिस्क्रिपेंसी। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज कि बिफोर इशूइंग द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट अपन एक बार ऑडिट रिपोर्ट को SA700 के साथ वर्ड बाय वर्ड कंपेयर कर लें। That is proper. Sorry, That is proper. If there is no contingent it is proper, it should be mentioned
बट सर इट इज नॉट मतलब समथिंग आइडियली आप कंपनीज एक्ट के अंदर देखोगे ना अदर रिपोर्ट ऑन अदर लीगल कंपनीज एक्ट के अंदर जो क्वेश्चन है अपन वहाँ पे रिपोर्टिंग क्यों करते हैं बिकॉज ऑफ द कंपनीज एक्ट क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन सिर्फ इतना क्वेश्चन मेरे को ये पूछता है कि वेदर द कंटिजेंट लायबिलिटीज हैव बीन डिस्क्लोज्ड और नॉट अमाउंट जीरो है बट द कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड इट तो आइडियली प्रॉब्लम होना है इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम और भी काफी सारे जो वर्ड बाय वर्ड के जो एरर्स होते हैं अगर एग्जैक्ट आपने वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखा ऐसे 700 के द सीएजी विल पॉइंट आउट दोस एरर्स फिर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सर अगेन नोट्स रेफरेंसिंग वाज ऑब्जर्व कि काफी सारों के अंदर नोट का जो रेफरेंसिंग होता है दैट वाज नॉट प्रॉपर आई गैप और इंडेस अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो काफी जगह द टर्म्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट बट इट वाज ऑब्जर्व काफी जगह गलती से मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख दिया है स्पेसिफिक 2 या 3 जगह होती है सर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिखने का रिक्वायरमेंट सो वी शुड पे स्पेशल अटेंशन टू दैट कि कहीं एएस वाले के अंदर आपने इंडेस तो नहीं लिखते नाउ कमिंग टू कॉमन एरर्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिकली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब मेजर एरर्स होते हैं कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी कुछ कुछ कारों के रिगार्डिंग अपने AS 15 AS 9 मल्टीपल एरर्स है सो व्हाट वील डू इज विल रन थ्रू ईच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मेजरली क्या क्या ब्रॉडली जो मेजर एरर्स क्या क्या देखने मिले वन मेजर एरर वाज रिगार्डिंग AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज सर काफी सारी कंपनी में देखा जाता है कि दे हैव मिस्ड आउट ऑन उन्होंने वहाँ पे अकाउंटिंग तो प्रॉपर्ली किया है फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर सेगमेंट बोरोइंग कॉस्ट आया लास्ट ईयर में कुछ लोन लिया था तो उन्होंने अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ किया बट दे मिस्ड आउट ऑन एडिंग दैट पैरा टू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोजर की जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो सेक्शन होता है उसके अंदर दे हैव नॉट एडेड द पैरा रिगार्डिंग बोरोइंग कॉस्ट कितनी बार ऐसे होता है कि मतलब सिर्फ कंपनी मतलब रूटीन में आप इतने सालों से करते आ रहे हो तो आपने कुछ कुछ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो उनको एप्लीकेबल है आपने खाली वो चीजों के अकाउंटिंग पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिटेन नॉट नेसेसरी एवरी अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी देयर कंपनी में कोई बोरिंग ही नहीं है तो कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो मैं वो पैरा नहीं रखूंगा तो भी चलेगा बट अभी हो सकता है लास्ट ईयर के अंदर ही कंपनी ने पहली बार कोई लोन ले लिया एंड देन दिस पैरा शुड बी एडेड सो वन थिंग दैट वी कैन डू इज कि अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ब्रॉडली फेस पे जो सारी चीजें आ रही है वी कैन कंपेयर इट विद आवर अकाउंटिंग पॉलिसीज की वेदर हर एक सेक्शन कवर हुआ है कि नहीं हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और वैल्यूएशन ऑफ इंजीनियरिंग में आता है मतलब then it's a problem but not necessary every company will be मतलब अगर कोई दूसरी कंपनी हुई फिर बाद में उसने नेक्स्ट ईयर के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेडिंग कर दिया या कुछ एक साल के अंदर ही आ गया हमेशा से नहीं करते थे बट इन्वेंटरीज आ गए तो पीपल मिस आउट जनरली इन दैट टर्म्स इम्पेयरमेंट समझ सकता हूँ इम्पेयरमेंट में होता है सर बट टेक्निकली इम्पेयरमेंट में भी नहीं होना चाहिए इम्पेयरमेंट नहीं चाहिए लेकिन इम्पेयरमेंट काफी लोगों को लगता है सर इम्पेयरमेंट का पैरा इज रिक्वायर्ड ओनली इफ इम्पेयरमेंट इज देयर करेक्ट बट टेक्निकली दैट इज नॉट राइट क्योंकि आपने एसेट्स तो थे अपने एसेट्स पे इम्पेयरमेंट टेस्ट इट इज यू आर रिक्वायर्ड टू चेक इम्पेयरमेंट की एसेट इम्पेयर हुए थे कि नहीं हुए थे तो भले इम्पेयरमेंट नहीं भी है तो भी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का पैरा अकाउंटिंग पॉलिसी में हमेशा होना चाहिए नाउ कमिंग टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज के अंदर देखा जाता है कि इन सम कंपनीज दीज वर द पैरास दैट वर स्टेटेड दैट इन्वेंटरी हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट इज राइटिंग दिस मच इनफ नहीं आपको कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे लेना होता है अगेन अगर ये इसने ऐसे लिख दिया होता इन्वेंटरी हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर क्या वो इनफ होता नहीं आपको कॉस्ट का फॉर्मूला भी देना पड़ता है सो देयर आर टू थिंग्स टू इन्वेंटरी वैल्यूएशन एक होता है कॉस्ट का फॉर्मूला और एक होता है इन्वेंटरी का वैल्यूएशन की पॉलिसी दिस इज नॉट माय इन्वेंटरी का अकाउंटिंग पॉलिसी इज कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर एंड दिस इज माय कॉस्ट फॉर्मूला तो मुझे दोनों चीज डिस्क्लोज करनी रहती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अब एक कंफ्यूजन होता है सर एनआरवी क्या होता है काफी लोगों को लगता है एनआरवी एंड मार्केट वैल्यू आर द सेम थिंग टेक्निकली नॉट क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन एनआरवी एंड मार्केट वैल्यू इज कि मार्केट वैल्यू में से अगर आप वो अमाउंट माइनस कर दोगे जो अमाउंट को कंपनी को फॉर एग्जांपल कमीशन देना पड़ेगा कुछ फ्रेट कुछ इनकर करना पड़ेगा बेसिकली द नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो मुझे मिलेगा वो इन्वेंटरी के लिए that amount is NRV and not the company not the amount that जो selling price होगा
तो कितनी बार क्या देखा जाता है कि कॉस्ट होता है, सब जन कंपेयर करते हैं कॉस्ट के साथ और सामने कंपेयर करते हैं एनआरवी के साथ, सॉरी सेलिंग प्राइस के साथ, सब्सिक्वेंट अप्रैल महीने के फॉर एग्जांपल सेल्स रजिस्टर के सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर कर लिए। बट दैट मच इज नॉट एनफ, आपको उसके अंदर थोड़ा और जो भी 1% 2% का जो होता है, कंपनी जो और एडिशनल कॉस्ट इनकर करती है, कमीशन देती है, वो सब भी मुझे फैक्टर इन करके मेरा जो बैलेंस एनआरवी का अमाउंट होगा, आई हैव टू ब्रिंग डाउन माय इन्वेंटरी टू दैट पर्टिकुलर अमाउंट। So this was regarding that only कि market value और NRV का difference. So कुछ companies वही again inventories are valued at cost of market value whichever is lower. Writing this is also not enough. Market value, you cannot write the term market value. It has to be net realizable value. Then in some companies it was observed, it was written that work in progress has been valued at raw material cost, or cost of finished goods and work in progress are determined on estimated cost basis. Accounting policy के wording से है, but technically it should not. This is violation. This is violation of valuation of inventory. अभी इसके अंदर as a practice, what should be the case? What should the company do ideally? जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसके अंदर जो कन्वर्जन कॉस्ट होता है, मुझे वो कन्वर्जन कॉस्ट भी फैक्टर इन करना होता है। Now what is conversion cost? Conversion cost can be many things, like जो मैंने और भी पावर एंड फ्यूल हो गया मेरा, या और भी जो चीजें जो मैं कन्वर्ट करने के लिए वो प्रोसेस के लिए अपार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स और भी जो मेरा जो लेबर का कॉस्ट हो गया, तो वो सारी चीजें भी मेरे वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ऐड होगी, बिकॉज टेक्निकली वो मेरे फिनिश्ड गुड्स में भी मेरी ऐड होती है वो सारी चीजें। Exactly. All the expenses that are directly attributable, these are the exact words. Directly attributable costs should be included. अब मेरे कुछ इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, वो सारे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मेरी ऑडिट फीस हो गई, वो आप ऐड कर दोगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ इन सम ये ज्यादातर देखा जाता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर, काफी लोग एक लाइन ऐड कर देते हैं कि इन्वेंटरीज हैव बीन टेकन वैल्यूड एंड सर्टिफाइड बाय द डायरेक्टर और मैनेजमेंट। सर ऐसे लिखने से आइडियली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पे भी कम नहीं हो रही है। सो इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट के साथ आया था ऑडिट ऑफ इन्वेंटरीज का, उसके अंदर दैट स्पेसिफिकली स्टेटेड कि आप ये लिख रहे हो तो यू आर टेक्निकली प्रोजेक्टिंग कि आपने कुछ उस इन्वेंटरी के ऊपर कुछ काम किया ही नहीं है, जबकि एज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करो इन्वेंटरी के ऊपर, तो आप खाली ये लिख देने से नोवेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड। So writing such statements and financial statements should always be refrained, और मतलब should not be there only ideally, because ये चीज लिखने से अगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो फिर क्यों लिखना ही क्यों ये चीज है। सर काफी लोगों को एक डाउट रहता है कि एनआरवी का टर्म, एनआरवी जो होता है, एनआरवी कैलकुलेट कैसे करना होता है। बहुतों को ये प्रॉब्लम आती है कि कंपनी का एनआरवी कैसे ले। यू कैन टेक इट ऑब्वियसली, मतलब जो नियर बाय पीरियड के जो सेल्स होते हैं आप मार्केट में तभी सेलिंग प्राइस क्या चल रहा है वो ले सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के मतलब जैसे कमोडिटी मार्केट्स के अंदर भी लिस्टेड होते हैं, कुछ इंडाइसेस होते हैं तो वहां से ले सकते हैं, कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स होती है तो वहां से ले सकते हैं, बट एनआरवी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। Now coming to cash flow statements, so it has been observed, अगर अपन देखने जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कि नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लिखा होगा कि नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज इंक्लूसिव ऑफ अनरियलाइज्ड एक्सचेंज रेट डिफरेंस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मेरा फर्स्ट लाइन आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, और मैं उसके अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर, और मैं उसके अंदर फिर आगे एडजस्टमेंट्स करके कैश फ्लो करना चाहता हूँ। आइडियली आई एम रिक्वायर्ड टू एडजस्ट स्पेसिफिकली, ये चीज का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो इंटरेस्ट इनकम होता है और डिविडेंड इनकम होता है वो मुझे ऑपरेट, अगर मेरा प्रॉफिट में इंक्लूड हो चुका है तो मुझे वो नेट प्रॉफिट के एडजस्टमेंट्स में ऊपर डालना होगा, और अगेन रिस्पेक्टिव मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जैसे है वहां पे मुझे नीचे वापस से एड बैक करना होगा। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि काफी लोगों ने मिस आउट किया था। अगर अपन ने कोई डिविडेंड पे किया है तो दैट विल ऑब्वियसली फॉर्म पार्ट ऑफ माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक और एक चीज जो देखी गई है, बोरोइंग्स वगैरह जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर क्या करते हैं सब जन, बैलेंस शीट पे जाते हैं, बोरोइंग्स प्रीवियस ईयर कितना था, करंट ईयर कितना था, दोनों का डिफरेंस लेके मेरा नेट अमाउंट बोरोइंग के अंदर कितना एड लेस हुआ है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लॉट कर देते हैं। टेक्निकली दैट इज नॉट राइट, मुझे ग्रॉस फिगर्स हमेशा रिपोर्ट करने होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर। जो मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंट स्पेसिफिकली स्टेट्स कि मैं चीजें नेट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल the amounts are large, turnover is quick and maturities are short. For example ऐसा है कि रोज आता है, अब बैंक की बात कर ले फॉर एग्जांपल, तो बैंक में अभी रोज डिपॉजिट आते हैं, रोज आते हैं, तो मैं उसको अभी ग्रॉस लेवल फिगर पे दिखाऊंगा तो दैट डज नॉट मेक सेंस। मैं उसको नेट पे दिखाता हूं तो देन इट इज ओके।
बट अदरवाइज इन अ नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जितना बोरिंग लिया था वो मैं एक सेपरेटली दिखाऊंगा, जितना बोरिंग मैंने रिपे किया है वो मैं एक सेपरेट दिखाऊंगा। मैं दोनों को नेट करके नहीं दिखा सकता। काफी लोग सेम लाइन में दिखा देते हैं और आगे ब्रैकेट में नेट लिख भी देते हैं, बट टेक्निकली दैट इज नॉट राइट। नाउ मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस के अंदर सॉरी कैश जो कंपनी शेड्यूल 3 के अंदर मेरा जो रिपोर्टिंग होता है कैश एंड बैंक बैलेंसेस करके जाता है। कैश एंड बैंक बैलेंसेस के अंदर क्या क्या आता है, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है और अदर बैंक बैलेंस दैट इज 3 to 12 मंथ्स की जो एफडी होती है वो भी मेरी अदर बैंक बैलेंसेस के सेक्शन में आती है। तो काफी सारी कंपनी में ऐसा देखा गया है कि वो कैश एंड बैंक बैलेंस का अमाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे क्लोजिंग अमाउंट है वो सेम है, जो जबकि टेक्निकली होना ही नहीं चाहिए। दैट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेरा जो अमाउंट है दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का अमाउंट। दीज टू थिंग्स कैन नॉट बी द सेम। अदर बैंक बैलेंस के अंदर वो एफडीज कौन सी वाली आएगी जो 3 to 12 मंथ्स की मैच्योरिटी वाली होगी, वो अदर बैंक बैलेंस में चली जाएगी। तो टू दैट एक्सटेंट वो चीजें बाहर निकल जानी चाहिए। फिर बाद में और भी जो दूसरी चीजें होती है, फॉर एग्जांपल कुछ ईयरमार्क बैलेंसेस है या कुछ वैसी सारी चीजें है, तो वो सारी चीजें भी मुझे एक नीचे एज अ नोट देके वो सारे अमाउंट्स मुझे बाहर निकाल देने चाहिए मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए। कुछ एफडीज लीन मार्क्ड होगी, कुछ तो वो सब आई एम रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज कि इसमें से दिस मच अमाउंट ऑफ एफडीज वर मार्क्ड लीन। या अगर ये वही है, सो लेस देन 3 मंथ्स का अगर कुछ मैच्योरिटी है तो वो मेरा क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। 3 to 12 मंथ्स है तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय अदर बैंक बैलेंसेस। नाउ कमिंग टू AS4 कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब मेरे कंपनी के अंदर पिछले से 138 का कोई नोटिस आया, कंपनी को कोई चेक बाउंस का कोई नोटिस आया, तो कंपनी ने एक डिस्क्लोजर भी दे दिया कि चेक रिसीव फ्रॉम XYZ वर डिसऑनर ड्यूरिंग द ईयर, द कंपनी हैज इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग और ये ऐसा ऐसा हुआ है। द मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ रिकवरी ऑफ ड्यूज एंड हेंस नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, ऐसा करके एक डिस्क्लोजर दे दिया। अब इसमें जो अपना कंटिजेंसीज एंड प्रोविजंस का जो ये अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, दे रिक्वायर जो भी कंटिजेंट लायबिलिटी होती है उसका आपको दो चीज डिस्कस करनी होती है। एक तो नेचर, क्या नेचर का लायबिलिटी है, एंड सेकेंडली एन एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट, कितना फाइनेंशियल इफेक्ट आएगा कल को अगर कंपनी के अगेंस्ट आ गया, तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट जो कंपनी के अगेंस्ट जाएगा। अब कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि अपन फाइनेंशियल का इफेक्ट कितना आएगा ये चीज आप नहीं एस्टिमेट कर पाओ, तो इन दैट केस आपको स्पेसिफिकली ये चीज लिखनी है कि although the nature of contingent liability has been disclosed, the financial effect of the same cannot be determined or something like that. और क्यों determine नहीं कर सकते, it is better if you write those reasons also. सर ये तो एक मेजर ब्लंडर है का, कोई कोई कंपनीज के अंदर क्या होगा कि जो मेरे शॉर्ट प्रोविजन फॉर बोनस है या कुछ कुछ चीजें हैं वो दे आर डायरेक्टली रूटेड थ्रू द रिजर्व्स एंड सरप्लस अमाउंट। आइडियली नथिंग शुड बी रूटेड थ्रू रिजर्व्स एंड सरप्लस, ईच एंड एवरीथिंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। और अगर कुछ ऐसा प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट प्रोविजन फॉर बोनस या वैसा कुछ है, या प्रोविजन फॉर जो भी कुछ वैसा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, तो वो नीचे शॉर्ट और एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू अर्लियर ईयर्स का एक लाइन आता है टैक्स एक्सपेंस के सेक्शन के अंदर, या कुछ शॉर्ट प्रोविजन आप प्रायर पीरियड इनकम प्रायर पीरियड एक्सपेंस करके दिखा दो, बट आप वहाँ पे डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते। उनका बोलना वो होता है जिन्होंने वैसा किया, उनका बोलना ऐसा था कि वो मेरे ये फाइनेंशियल ईयर के पर्टेनिंग नहीं था इसलिए वहाँ पे कर दिया, बट टेक्निकली दैट कैन नॉट बी द केस। Now regarding prior period incomes and expenses, सर काफी सारी कंपनीज में देखा गया कि प्रायर पीरियड इनकम्स या प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक मिसलेनियस वाले सेक्शन के अंदर क्लब कर देते हैं। आइडियली दैट इज वायलेशन ऑफ AS5 because AS5 के अंदर it is specifically written that it has to be separately disclosed and it cannot be clubbed with anything else. इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज सर कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेगा उसको पता तो होना चाहिए कि मेरा इतना प्रॉफिट था, उसमें से मेरा इतना पोर्शन प्रीवियस ईयर के रिलेटेड था या प्रीवियस ईयर के पर्टेनिंग था, तो मैं जो फाइनेंशियल रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे कैन मेक एन एस्टिमेट टू दैट। नाउ कमिंग टू AS9, रिगार्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन काफी कंफ्यूजन है कि सर्विसेज के केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए। सो देयर कैन बी टू थिंग्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। एक सेल ऑफ टिकट्स है, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है
2nd अप्रैल को कोई इवेंट है एंड लेकिन बुकिंग्स हैव बीन क्लोज्ड बाय 25th ऑफ मार्च, तो कंपनी ने सारा सेल कर दिया वो इवेंट का, पूरा सब बुकिंग हो गया, तो कैन द कंपनी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन द ईयर 31st मार्च? नहीं। अब एक और एक केस है कि मैंने कुछ फॉर एग्जांपल अमेजोन का कुछ 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन का फीस पे किया, तो इन दैट केस मैं 1 ईयर का जो अभी मैंने 25th मार्च से अगले साल के 25th मार्च तक है, तो मैं उसका भी रेवेन्यू पूरा वो साल में मुझे अमेजोन को तो तभी मिल जाता था, अमेजोन का पूरा रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज कर देगा? नहीं करेगा। There are two concepts in AS9. One is completed service contract and one is proportionate completion method. So in the first case, जब तक मेरा इवेंट नहीं हो जाता 2 अप्रैल को, जब तक मेरा इवेंट नहीं हो जाता तब तक मैं वो चीज का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। वो सारा रेवेन्यू मुझे जो भी आ गया है वो मुझे एज एन एडवांस ट्रीट करना है एंड अगले साल के इनकम के अंदर मुझे डालना है। एंड इन केस ऑफ ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो मेरा मैं प्रोपोर्शनेट मुझे करना है कि मेरे वो 5 दिन का रेवेन्यू उतना है, उतना मैं बुक कर लूंगा, बाकी का अमाउंट आई विल ट्रीट इट एज एन एडवांस और मैं आगे ओवर द पीरियड आई विल रिकॉग्नाइज इट। बेसिकली अ पॉइंट इन टाइम और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। नाउ सर इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स के अंदर सर काफी सबको पता है कि गुड्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, बट सर सबको ये कंफ्यूजन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कब होता है? सबको काफी लोग क्या करते हैं कि जब इनवॉइस बन गया तब मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन प्रेवलेंट अक्रॉस कंपनीज, बट आइडियली एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ प्रोसीजर कॉल्ड एज सेल्स कट ऑफ, कि मेरे जो कट ऑफ के डेट के ऊपर जो मेरी सेल्स हुई है आई हैव टू चेक कि वेदर दो सेल्स उनका मेरा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड था वो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ। सर हो सकता है कुछ कुछ कंपनीज के अंदर मतलब मेरा जब गाड़ी मेरी जाती है मतलब 31 मार्च को शाम को क्या फैक्ट्री से मेरी गाड़ी निकली है, बट लेकिन वो अभी मेरे को डिलीवरी करनी है विशाखापट्टनम में, तो वहां पे पहुंचेगी 4-5 दिन बाद में, तो रास्ते में गाड़ी को कुछ भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होने वाली है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। तो आइडियली कंपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए वो इसके अंदर। कंपनीज बिल इनवॉइस तो हो जाता है, इनवॉइस होगा बट लेकिन वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में नहीं आएगा, तो आइडियली दैट रेवेन्यू हैज टू बी रिवर्स्ड एंड इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट ईयर। सर अभी एक मेजर प्रॉब्लम इसमें आता है एक्सपोर्ट्स के केस के अंदर। One of our case, which is the payment of container, container has repaired, we have incurred the cost and everything, that get out नहीं हुआ है, but we are booking any unbilled revenue in this current year. Because सर वहाँ पे आप सर्विस कर रहे हो ना, वहाँ पे आप गुड्स नहीं, तो सर्विस के अंदर अगेन वहाँ पे अनबिल्ड रेवेन्यू जो अपन प्रोपोर्शनेट या कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड जो वैसा है, तो वहाँ पे आपने अपना काम कर लिया, अपना सब हो गया, बस खाली उसको आपके एंड से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई है, सामने वाले ने खाली गाड़ी नहीं भेजी है वो माल उठाने के लिए, तो इन दैट केस आप तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे, वो जब तक पड़ा वो जब आके आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई है, सो दैट्स व्हाई यू कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। इट डिपेंड्स टोटली ऑन द कमर्शियल टर्म। सर कुछ कंपनीज के अंदर अभी होता है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर अभी फॉर एग्जांपल मैं कुछ यूएस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आइडियली जब तक कोई अगर मेरा कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोलता है कि मेरे को वहाँ पे यूएस के अंदर कस्टमर के वहाँ पे डिलीवर करना है, तो जब तक वो चीज वहाँ पे डिलीवर नहीं हो जाती 2 महीने, भले मैंने मार्च में किया 2 महीने बाद में वो डिलीवरी होगी, तो मैं 2 महीने तक उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो देर आर मेनी कंपनीज जो ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिनका 70-80% टर्नओवर एक्सपोर्ट के फॉर्म में होता है, तो वो लोग आइडियली अपना फेब और मार्च का पूरा सेल ही रिवर्स कर देते हैं, उनको मतलब a significant chunk of their sales get reversed, like 10%, 15% of their sales get reversed every year, and ideally that should be the case, क्योंकि जब तक मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ। सर रिफंड रुक जाता है ना, रिफंड रुक जाता है, सर जैसे ऊपर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो रिफंड का क्लेम नेक्स्ट ईयर तो करना ही पड़ेगा आइडियली यस सर, बट लेकिन सर इसमें भी एक और एक प्रॉब्लम आपको एक प्रॉब्लम आएगा, खाली ये एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगा आपका जीएसटी के केस के अंदर। जीएसटी के अंदर आपको उसका भी एक रिकंसिलिएशन आइटम फॉर्म करेगा, आइडियली यू कैन नॉट हेल्प इट सर, जीएसटी यू कैन नॉट हेल्प इट। आइडियली आप जब एज एन ऑडिटर आप सर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप मतलब आप ऑडिट के टाइम आप यू कैन नॉट जस्ट बिकॉज टैक्स के अंदर उसका ये इम्प्लीकेशन आएगा, दैट कैन नॉट बी द रीजन टू जस्ट जीएसटी इंपैक्ट भी तो उसका अलग से होगा, और सर होगा ही अलग ही होगा, ऑब्वियसली अलग होगा। जीएसटी के अंदर बोलता है कि सप्लाई के बेसिस पे होना चाहिए, यहाँ पे बोलता है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के बेसिस पे होना चाहिए। ही कैन डेफिनेटली सर, जीएसटी डिपार्टमेंट वालों ने तो बीच में 1-2 साल पहले ऐसे सुनने में आया था कि दे हैड इशूड नोटिसेस टू सीए फर्म्स आल्सो, क्योंकि क्या सीए फर्म्स लॉयर्स, क्योंकि क्या हो गया था कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, लेकिन जीएसटी तो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है एग्जैक्टली, और जीएसटी तो जब इनवॉइस बनता है तब वो लोग कर देते हैं, तो इन दैट केस वो उसके तो जीएसटी डिपार्टमेंट का अगर क्वेश्चन आएगा तो we'll have to explain. If you are reversing, and you said export turnover, they are reversing February.
Then the goods has to be shown as our stock in goods in transit should be. It has to be shown in goods in transit again. और मैं उसको इन्वेंट्री को मैं सेल्स प्राइस पे नहीं दिखाऊंगा, मैं इन्वेंट्री के कॉस्ट पे दिखाऊंगा, तो मेरा टेक्निकली वो जो प्रॉफिट कंपोनेंट होगा वो जो मार्च के सेल्स है इट विल गेट शिफ्टेड टू नेक्स्ट ईयर. बट लेकिन अगेन मतलब ये फर्स्ट ईयर जब होगा ना तब सर प्रॉब्लम होती है. बाद में नेक्स्ट ईयर से तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर का आपका ये साल में आता है, ये साल का प्रीवियस ईयर में जाता है, तो इट जस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीजें. बट अगेन मतलब दैट इज इनकम टैक्स से नहीं आएगा ना सर. इनकम टैक्स के अंदर नहीं ना सर. इनकम टैक्स के अंदर पूरे स्पेसिफिकली इनकम टैक्स आईसीडीएस वगैरह भी इट इज वेरी मच इन लाइन विद दिस ओनली. आईसीडीएस के अंदर भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स और ये सारे टर्म्स यूज करते ही हम लोग. तो आइडियली आपको तभी भी नहीं होगा तो मतलब यू कैन जस्टिफाई दैट, मतलब दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. और वो फर्स्ट ईयर के अंदर सर ये इशू होगा मतलब कि आपका एक बार के लिए मतलब हो जाएगा, बट आगे से तो आपको टेक्निकली इश्यूज होगी नहीं, क्योंकि आपका हमेशा वो प्रीवियस ईयर का आप प्रीवियस ईयर वाला इनकम भी तो करंट ईयर के अंदर लोगे सर. इनकम यू आर नॉट इवेडिंग इनकम, मतलब आप इनकम का सिर्फ पोस्टपोनमेंट हो रहा है नेक्स्ट ईयर के अंदर. There is a true recognition of it. That is a true recognition of revenue. Yes. सर कंपनीज लाइक अगर आप ये इनकी बात शॉपर स्टॉप वगैरह ये सब देखोगे ना सर, जब तक उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड तो कैसे होता है कि आइडियली 30 डेज का फॉर एग्जांपल रिटर्न पीरियड है, तो जब तक वो 30 डेज नहीं हो जाए, अमेजोन के अंदर 7 दिन का रिटर्न पीरियड मिलता है आपको, तो जब तक आप अमेजोन लास्ट के 7 दिन का सेल्स टेक्निकली रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता, बिकॉज उनका तब तक वो रिस्क खत्म ही नहीं हुआ है वो पूरा वो किसके अंदर. But they do it on percentage basis. They do it on percentage basis. They do it on percentage basis. Generally क्या करते हैं शॉपर स्टॉप वगैरह ये सब क्या करते हैं कि दे एस्टिमेट कि मेरा हिस्टोरिकली इतना सेल्स रिटर्न आता है, तो मैं उतना पोर्शन का मैं हमेशा सेल्स वो लोग एक परसेंटेज एक डिटरमाइन करके हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से दे अप्लाई दैट परसेंटेज और उतना सिर्फ उतना सेल्स रिवर्स करते हैं. Regarding yeah. So now coming to insurance claim वगैरह का सिनेरियो, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर फायर हो गया था, बट इट वाज ऑब्जर्व्ड कि कोई कंपनीज ने इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर दिया तो भी उसको एज एन इनकम तभी बुक कर दिया था. बट आइडियली दैट कैन नॉट बी द केस. इंश्योरेंस क्लेम हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज वेरी मच सर्टेन एंड रीजनेबल कि आपको वो क्लेम आने वाला है. एग्जैक्टली. नॉट नेसेसरी कैश बेसिस ऑल्सो, बट लेकिन एटलीस्ट वो क्लेम अप्रूव हो गया हो और वैसा सब हो गया तो आप उसको क्लेम रिकॉग्नाइज करो तो समझ में भी आता. Ideally, insurance claim does not form part of AS9 because वो revenue के definition में आता नहीं है आपका insurance claim. But as a matter of prudence or you should not be recognizing the amount of insurance claim until the amount is measurable also sir ideally. क्योंकि amount measurable भी नहीं होता है, insurance वाले कितना minus करेंगे क्या करेंगे आपको नहीं पता. And till the point it is not unreasonable to expect कि वो claim आएगा आपको. Yeah, but in that case, what happens? Suppose in current year, Loss आएगा. loss. But it is not a prudent exercise of judgment because I am going to get a certain amount of money. May not be a specific amount, but I will be if I have put a claim of say 1 crore rupees, I may be getting 1 crore, I may be getting little less than that. But if I don't recognize my profit and loss account for a particular year, may go haywire if the amount of loss is more. It will go sir, but not necessary sir. But अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आप कल को अगर आपने रिकॉग्नाइज कर दिया बट वो इंश्योरेंस क्लेम में बहुत बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस क्लेम कंपनीज अप्रूव नहीं करती है क्लेम, तो आइडियली आप इन दैट केस आप फिर क्लेम को रिकॉग्नाइज कर दोगे पहले से, इवन दैट वुड बी. That is not a prudent exercise. No, I say once you take an insurance, you are always sure that there is something going to be insured for that. सर ज्यादा प्रॉफिट कम दिखाना विल बी प्रूडेंट rather than my profits. Showing less or more profits. It's a question of showing what is the fair amount of income or less. Exactly. नहीं but So many steps are there in between, no? Like survey, Exactly. report and all this. Exactly. No, that is okay. You come That's to okay. know To that extent, on it's the okay. basis of That's that. okay. Once I lodge my claim, I should recognize to a certain extent. If you have not 100%, I would suggest it should be recognized as 100%, and if it's not fully, it should be recognized on the date of settlement. So in matters like fire, it is not necessary कि आपने claim lodge कर दिया तो भी there's still a chance कि जब तक वो claim approve नहीं हो जाए, I'm not saying वो claim का payment आ जाए, but at least claim के approval का till the point it is not unreasonable to expect. Now I'll say one more thing. इसके अंदर सर कैसे होता है कि काफी सारी गोल्ड लोन की जो कंपनीज होती है उनके वहाँ पे तो गोल्ड थेफ्ट इज अ रेगुलर सिनेरियो, मतलब कहीं ना कहीं इतनी सारी ब्रांचेस होती है तो कोई एक ब्रांच में गोल्ड थेफ्ट हो गया बट दे आर इंश्योर्ड, तो वहाँ पे दे फाइल इंश्योरेंस क्लेम्स, बट वहाँ पे दे हैव इतना सारा बैक ट्रैक डेटा कि मतलब हिस्टोरिकली वो लोग देखते हैं कि मेरे को हमेशा 40% आया है, तो इन दैट केस वो लोग 40% करते हैं सर वहाँ पे ठीक है. बट इन केसेस ऑफ फायर सर मेरे पास पता ही नहीं है मेरे को आएगा नहीं आएगा, हमेशा एक नया सिनेरियो है. Not that.
नहीं आएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, then I should not all this kind of things, they do matter. They do matter, sir. There are many clauses. Service report, how the service report is going. If you are sure about that, then it's okay. Yeah, But exactly. conservatism will certainly help. Exactly. But if again, मैं बोलूँगा ना, till the point you are not, it is not unreasonable to expect कि वो claim आएगा. अगर it is very much reasonable कि वो claim आने ही वाला है, कीजिए फिर, then it's fine. But generally नहीं होता सर वैसा. कस्टमर हो और सर्वेयर का रिपोर्ट आपके फेवर में है और आपको ऊपर से पता चल गया कि होने वाला है सर्टिफाइड, तो ठीक है, एटलीस्ट देयर इज सम डेटा विथ यू. Exactly. So moving on to next, another major जो सारे at least non-corporates में तो काफी सारों में दिखता ही है कि dividend is accounted as and when received. Accounting policy में अपन ऐसा लिखता है. But ideally sir, it should be this way कि when the right to receive dividend has been established. दोनों में एक फर्क होता है. रिसीव तो मेरा होगा जब कंपनी ने प्रपोज कर दिया, एजीएम में अप्रूव हो गया, तभी मेरा राइट टू रिसीव डिविडेंड तो एस्टैब्लिश हो ही गया. बट तो मैं तभी वो बेसिस पे मैं तभी इनकम रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, एंड आई डोंट नीड टू वेट टिल द पॉइंट द डिविडेंड इज एक्चुअली क्रेडिटेड टू माय अकाउंट. So another major जो एक ये भी again I would call this also kind of a blunder only because sales के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अमाउंट इंक्लूड कर दिया. Ideally even that is a violation of AS9. एक और एक चीज सर काफी जो चीजें देखी गई कि हेजिंग का जो ट्रांजैक्शन होता है मेरा जो फॉरेक्स गेन लॉस का हेजिंग का जो ट्रांजैक्शन होता है, मैं फॉरवर्ड लेता हूँ या वैसा बोलूँ, तो फॉरवर्ड पे जो गेन या जो लॉस होता है वो लोग क्या करते हैं, काफी सारी कंपनीज दे ट्रीट इट एज रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू वाले सेक्शन के अंदर डाल देती है, बट सेल्स के अमाउंट में इंक्लूड कर देती है. बट आइडियली दैट कैन नॉट बी द केस बिकॉज ये दो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है. आपको जो हेजिंग से जो गेन होगा वो आपको सेपरेटली हमेशा शो करना पड़ेगा, और जो आपको सेल्स की वजह से जो इनकम है दैट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट. बिकॉज बेसिकली कोई भी रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये चीज भी तो समझ में आनी चाहिए कि वो दो सेपरेट फंक्शन, जो ट्रेजरी फंक्शन की वजह से जो मेरा गेन हुआ है वो कितना हुआ है, और मेरा जो एक्चुअल ऑपरेशन वाले फंक्शन की वजह से जो गेन हुआ है वो कितना हुआ है. No, Yes. there was some foreign exchange fluctuation gain when it is an invoice is the export invoice. That has to be clubbed with the sales, but has to be shown separately. It has to be shown separately, sir. Other income. It's not treasury gain. चलेगा सर, बट मैंने जो भी है मतलब मेरा जो नॉर्मल मैंने सेल किया था, मतलब 2 महीने बाद में जो फॉरेक्स की गेन लॉस की वजह से जो भी हुआ वो मुझे सेपरेटली वापस दिखाना पड़ेगा, अदर एक्सपेंस या अदर इनकम. Because we do the restatement as on 31st of March every year. हाँ, नहीं तो वो अनरियलाइज फॉरेक्स गेन लॉस हुआ सर. सो फॉरेक्स गेन लॉस जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रियलाइज वाला, एक होता है अनरियलाइज वाला, तो दोनों वापस ही आपको सेपरेटली वापस दिखाना पड़ेगा. One question, for the dividend, the dividend is deductible at the time of payment of. So whether there is mismatch because of that. There may be mismatch, sir. वो हो सकता है. You have to recognize in the previous year or the grade. सर मैं अकाउंटिंग करूंगा प्योरली, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट के हिसाब से. इनकम टैक्स के अंदर हो सकता है मिसमैच हो सर, वो हमेशा दैट इज द सिनेरियो. इनकम टैक्स, जीएसटी, दूसरे जो भी लॉज है उनके साथ देयर मे बी अ चांस कि आपको मिसमैचेस हो. सर नाउ अनदर मेजर थिंग यहाँ पे सर, यहाँ पे भी सब बहुतों को लगता होगा कि लैंड कभी डेप्रिशिएट होना ही नहीं चाहिए, बट आइडियली देयर कैन बी सम केसेस जहाँ पे लैंड भी डेप्रिशिएट होगा. नाउ फॉर एग्जांपल काफी सारी कंपनीज होती है जिनका एमआईडीसी में लैंड होता है, तो वो होता है फाइनेंस लीज पे वो लैंड आपके 99 इयर्स. तो वो हो सकता है कि 99 इयर्स के बाद में भी एक क्लॉज होगी 99 के बाद में और 99 का एक्सटेंशन का ऑप्शन अवेलेबल. तो इन दैट केस आल्सो सर मेरे को हमेशा आई हैव टू रिकॉग्नाइज लैंड. अगर मेरा फ्री होल्ड लैंड है तो मैं डेप्रिशिएट नहीं करूंगा. अगर मेरा लीज होल्ड लैंड है देन आई ऑलवेज हैव टू डेप्रिशिएट दैट लैंड, अगर मेरा फाइनेंस लीज के ऊपर है तो. आइडियली कहीं पे भी लिखा नहीं है कि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए. ये हमेशा से अपन एज्यूम कर ले कि लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है, बट इन दिस केस फाइनेंस लीज के केस के अंदर लैंड की लाइफ अनलिमिटेड नहीं है. वो भले ही इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बट अगेन देयर इज सम लिमिट टू इट. तो आपको एटलीस्ट 198 इयर्स के अंदर तो उसको आपको डेप्रिशिएट करना ही पड़ेगा. एक और एक चीज होती है सर, काफी बार जब लैंड खरीदते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल तो लैंड के अंदर आपने 100 रुपीज तो आपने टोटल 105 रुपीज दिए, 100 रुपीज टुवर्ड्स द लैंड एंड 5 रुपीज टुवर्ड्स सम अदर. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कुछ डिस्ट्रक्शन का कॉस्ट हो या लैंड के ऊपर या वो सारी चीजें, मतलब ओवरऑल एक आपने उसका 105 पे किया. तो इन दैट केस सर आपको 100 तो आप ठीक है नहीं डेप्रिशिएट करोगे वो चलेगा अगर फ्री होल्ड लैंड है तो, बट 5 रुपीज तो आपको फिर भी डेप्रिशिएट करना ही पड़ेगा जो भी एक एस्टिमेट उसकी लाइफ का. सॉरी
depreciation on land, you can write. Yeah, if it is a finance lease, only if it is a finance lease, not land. फ्री होल्ड लैंड है तो अगर उसके लाइफ अनलिमिटेड है तो नहीं। MIDC वगैरह के अंदर से जनरली लीज होल्ड ही होता है, वो फ्री होल्ड कभी होता नहीं। एग्जैक्टली हाँ, अपना आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो शेड्यूल होता है उसके अंदर आपका वहाँ पे लैंड के वहाँ पे डिप्रिसिएशन आता नहीं है। बट अगर लीज होल्ड लैंड है, आपको लैंड को दो सेपरेट दिखाना होगा, एक फ्री होल्ड लैंड, एक लीज होल्ड लैंड। लीज होल्ड लैंड के केस में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन आएगा, करना होता है सर। Ideally it is required. Amortization of leasehold rights. या amortization सर, यहाँ तक कि अगर इंडेस के अंदर तो होना, तो वो लीजहोल्ड लैंड को है ना, आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में दिखाते भी नहीं हो, वो आप राइट ऑफ यूज एसेट्स के अंदर लेके जाते हो कि 99 सॉरी इंडेस के अंदर। हाँ, और इंडेस के अंदर राइट ऑफ यूज एसेट क्रिएट करके उसको फिर बाद में आप ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट करते हो। So that in income tax, at what rate will you depreciate? सर इनकम टैक्स के अंदर आपको इनकम टैक्स में भी सर ये किसका The blocks here, 10%, 15, 40, and then you have no choice. इनकम टैक्स के अंदर सर आइडियली इन सम केसेस, सर आई एम नॉट एन इनकम टैक्स एक्सपर्ट, बट सर इन सम केसेस इनकम टैक्स के अंदर भी आई हैव बीन टोल्ड कि पीपल क्लेम एज अ लीज राइट्स मेरा, मैं उसको डेप्रिशिएट करता हूँ। इनकम टैक्स के अंदर भी लोग कुछ कुछ उसको क्लेम करते हैं। उसमें तो fixed है, you cannot change the rate. It can be 10, 15, 40, or you will be. So then there will be a deferred tax covered, I agree. Exactly. It will cover the 10% or as a 25%. सर आप उसको नीदर 10% नॉट 25%, आइडियली आपको उसको खाली एक लीज राइट के जैसे आप ट्रीट करके जितना डेप्रिसिएशन का वो अमाउंट है, हाँ हाथ से, मतलब कि आपको उसको प्रॉपर्टी प्लांट के उसके अंदर आप उसमें डालो, वो शेड्यूल के अंदर वापस नहीं, इनमें आपको उसको एक कहीं पे अदर एक्सपेंस के जैसे आप उसको एक सेपरेटली आप क्लेम करने का, सॉरी सेक्शन 37 में मिल जाएगा। हाँ, उसका आइडिया कुछ तो ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर्स है सर, कुछ लोगों ने क्लेम किया है ये चीज, क्योंकि सर बड़े कंपनीज के सर उनके द अमाउंट उनका गोज इनटू ह्यूज क्रोर्स ऑफ रुपीस। You can claim it as amortization cost as compared to depreciation. एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं जरूरी नहीं है डेप्रिसिएशन के नाम से क्लेम करूँ, बट मैं कोई दूसरे नाम से उसको क्लेम करके वी कैन ऑलवेज, बट अगेन मतलब दैट विल बी अ डिस्प्यूटेड केस, मतलब दे डिस्प्यूटेड, बट देयर हैव बीन प्रेसिडेंट्स जहाँ पे हुआ है। सर एक और एक प्रॉब्लम होता है कि इसमें जैसे मैं डेप्रिशिएट करूँ तो किस पे करूँ, 99 इयर्स या 198 इयर्स, क्योंकि 99 इयर्स है फिर फर्दर 99 इयर्स के लिए एक्सटेंडेबल है। इन दैट केस सर जनरली सब्सटेंस ओवर फॉर्म अप्लाई करके यू कैन ऑलवेज टेक 198 इयर्स की, भले वो 99, बट इट इज वेरी मच प्रोबेबल कि वो फर्दर 99 के लिए एक्सटेंड करेंगे। So now another major thing that has been observed is कि in case of property plant equipments, कोई कंपनीज ने क्या किया सर कि जब भी फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लैंड वाले ब्लॉक के अंदर मेरे पास 4 लैंड थे, मैंने कंपनी को अपना नेटवर्क बढ़ाना था, तो कंपनी ने क्या किया, लैंड के ब्लॉक में से सिर्फ 2 लैंड को रिवैल्यू कर दिया और वो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से जो भी वैल्यू अपवर्ड वैल्यूएशन था उन्होंने वो ले लिया। इज दैट द करेक्ट अप्रोच? नो। What property plant equipment का accounting standard states is whenever you are revaluing any certain class of asset, आपको वो पूरा class of assets को revalue करना है। You cannot follow the selective approach की जो जिसके अंदर 2 के अंदर वैल्यू बढ़ रही थी मैंने उसको कर दिया, 2 में जो नहीं हो रही थी उसमें मैंने नहीं किया। That cannot be the scenario. सर एक और एक जो काफी सारी एरर जो इसमें ऑब्जर्व होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व जब बना लिया, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का मेरा लैंड, 100 रुपीज की फॉर एग्जांपल बिल्डिंग थी, मैंने रिवैल्यू करके उसको मैं 50 पे लेके आ गया, तो 50 का जो मेरा नुकसान हुआ जब मैंने रिवैल्यू किया, मेरे को वो पीएनएल के अंदर लेके जाना होता है और बैलेंस 50 को मैं ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट करूंगा, जो बैलेंस जो लाइफ है। ये कहिए मैंने 100 का 150 कर दिया, 100 के 50 रुपीज, तो मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया और मैंने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर 100 को 150 का बिल्डिंग्स 150 पे दिखा रहा हूँ और फिर मैं वो 150 को ओवर द बैलेंस पीरियड डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 10 साल में कर रहा हूँ, तो हर साल 15 का डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो कोई लोगों ने क्या किया है कि 15 रुपए का पूरा डेप्रिसिएशन पीएनएल के अंदर डाल दिया है, जबकि टेक्निकली दैट इज एग्जैक्टली आपको उसके अंदर जो रिवैल्यूड रिजर्व का जो पोर्शन है वो मुझे रिवैल्यूड रिजर्व से ही निकालना है और जो पीएनएल का पोर्शन है वो मैं पीएनएल से निकालूंगा। तो एक अनदर मेजर डिफरेंस जो अभी होता है, जैसे अपन बात करें थे इनकम टैक्स और ये इसकी, सर इनकम टैक्स में हमेशा अलग हो सकता है, रीजन भी इनकम टैक्स बोलता है पुट टू यूज और मेरा कंपनीज एक्ट बोलता है रेडी टू यूज। तो जब जिस दिन रेडी हो गया यूज करने के लिए उस दिन मुझे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कैपिटलाइज करना ही है, बट मैंने यूज पुट टू यूज नहीं है तो फिर मुझे एज पर इनकम टैक्स उसको क्या डेप्रिसिएशन में उसका क्लेम नहीं कर सकता। तो अगेन वहां पे भी मेरा मिसमैच होने ही वाला है।
इसके अंदर लेकिन एक थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर वो रेडी टू यूज का कैसे बोलता है, ये अवेलेबल फॉर यूज इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। सो अगेन मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर भी देयर कैन ऑलवेज बी अ सिनेरियो कि मतलब जिस मैनर में अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक बेयर शेल फ्लैट ले लिया, कंपनी ने कोई बेयर शेल ऑफिस ले ली। अब वो बेयर शेल ऑफिस मतलब कुछ भी अभी तक इंटीरियर वगैरह कुछ हुआ नहीं है, वो कंपनी के अंदर अभी जस्ट खरीदा, उसमें इंटीरियर का काम करवाएगा अभी तक। तो आइडियली वो ऑफिस को पूरा कैपिटलाइज करके क्या डेप्रिसिएशन चालू कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी तक इट इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज इन द मैनर इंटेंडेड, अभी तक वो सब काम चल रहा है सब, वो जब तक वो सारी चीजें हो नहीं जाती तब तक मैं उसको कैपिटलाइज नहीं करूंगा। नो अगेन मतलब ये काफी सब्जेक्टिव चीज है कि मतलब इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट इट कैन गो बोथ वेज। सो नाउ अनदर मेजर थिंग, एक्सपोर्ट्स के केस के अंदर मेरा जो बिल ऑफ लेडिंग होता है उसके ऊपर जो फॉरेक्स का जो रेट आता है दैट इज एज पर जो कस्टम्स रेट होता है। हाउएवर एज पर कंपनीज एक्ट मुझे जो रिकॉग्नाइज करना होता है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो सेल्स का जो मैं वैल्यू रिकॉग्नाइज करता हूँ, अगर मैं $100 का चले तो उस दिन पे जो मेरा फॉरेक्स का रेट था मुझे वो रेट पे सेल बुक करना होता है। जबकि काफी सारी कंपनीज में इट वाज ऑब्जर्व कि व्हाट दे हैव डन इज दे हैव टेकन इट एज पर द कस्टम्स रेट। सर कस्टम्स का रेट 14 दिन में एक बार नोटिफाई होता है, रेट तो फ्लक्चुएट्स एवरी डे एवरी मिनट, तो आइडियली आपको वो तभी उस दिन का आपको रेट लेना चाहिए। एसबीआई का लेते सो एक जनरली सब व्हाट आई वुड सजेस्ट इज एक आरबीआई का रेफरेंस रेट नोटिफाई होता है। earlier it used to be notified on the RBI site only, now they have given this thing to FBIL करके एक है, Financial Benchmarks of India Limited करके, it's something somehow related to RBI only, but they come out with the reference rates, तो it's always suggested कि वो वाले reference rates को अपन base लेके we can take it. तो कमिंग टू अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट सर, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स में सर काफी सारे कंपनीज के अंदर इट वाज ऑब्जर्व्ड कि दे हैव रिटन दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर कैरिड एट कॉस्ट एंड नो प्रोविजन फॉर डिमिनिशन हैज बीन मेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। टेक्निकली वो हो नहीं सकता कि अगर कुछ भी आपका और कुछ कुछ केस में सर उन्होंने लिखा था कि प्रोविजन बनाया इफ एनी फॉर परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू। सर आइडियली द वर्ड परमानेंट डिमिनिशन आल्सो इट हैज बीन टेकन एज अ वायलेशन, क्योंकि वो क्या बोलते हैं अदर देन वी हैव टू रिकॉग्नाइज अ डिक्लाइन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इफ इट इज अदर देन टेम्परेरी डिमिनिशन। सर आप जब परमानेंट डिमिनिशन बोल देते हो तो मतलब टेक्निकली आपने इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ ही कर दिया वो। जब आप प्रोविजन की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली देयर इज सम चांसेस है कि कंपनी वापस रिवाइव होगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है तो वो इन्वेस्टमेंट वापस रिवाइव होगा। तो द वर्डिंग दैट वी हैव टू यूज शुड ऑलवेज बी अदर देन टेम्परेरी डिमिनिशन एंड नॉट परमानेंट डिमिनिशन। then in some cases again it was observed कि क्या कोई सब्सिडरीज की पूरी नेटवर्थ इरोड हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी उसका कोई परमानेंट मतलब क्या सॉरी फिर भी उसका कोई भी डिमिनिशन इन वैल्यू कुछ प्रोविजन किया हुआ नहीं है। सो वी शुड ऑलवेज टेक दैट आल्सो इन केस अगर अपन बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट अगर कोई मतलब मैनेजमेंट हैज प्लान्स टू रिवाइव द कंपनी या वैसा, सो सिंस इट इज जस्ट अ टेम्परेरी डिमिनिशन अपन बोल रहे हैं तो इन दोस केसेस ठीक है, बट we'll have to document that thing also कि कंपनी का आगे प्रोजेक्शंस कैसा है, कंपनी आगे उतना रिकवर कर पाएगा क्या कि जितना उन्होंने ऑलरेडी नेटवर्थ इरोड कर चुके हैं। So to that extent we should book loss in we should make a provision for that long term investment. सर एनसीएलटी का केस है तो कैसा रीड करेंगे? सर तो आइडियली आपको अगर आपको वही जजमेंट अगर आपको लग रहा है कि नहीं आने वाला है, कंपनी से रिकवरीज नहीं आने वाली, तो आप एक बार तो आपको प्रोविजन कर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है 10-20% आएगा तो आप 10-20% का मत करो, बाकी 80% का तो कर लीजिए। बट वो कुछ तो एक जजमेंट इट विल कंप्लीटली इन्वॉल्व जजमेंट। प्रोविजन इज अ मस्ट, कुछ तो क्योंकि मेरा कुछ ना कुछ तो नुकसान होने ही वाला है मेरा टेक्निकली, ऐसा तो चांसेस बहुत रेयर होगा कि क्या मतलब पूरा का जितना मैंने पैसा डाला उतना पैसा मेरे को पूरा मिलने वाला है। इसमें वो बोल रहे कोई नीचे वाली कंपनी एनसीएलटी में चली गई, मतलब मैं जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया वही बोल रहे राइट? अच्छा ओके। या कमिंग टू AS50 कोई कुछ ना कुछ हेयरकट जो भी थोड़ा बहुत तो होगा ही हमेशा। लेकिन सर उसका बिल्डिंग बड़ी कंपनी ने किया, टाटा बिरला वगैरह बट उन्होंने बड़ी कंपनी ने पूरा पैसा देने का बिल्डिंग तो किसी ने नहीं किया, पूरा पैसा बिल्डिंग से जनरली पता नहीं, मैंने ऐसा सिनेरियो देखा नहीं है, कुछ ना कुछ हेयरकट तो देती है, वरना तो अगर हेयरकट देने की रिक्वायरमेंट ही ना हो तो वो कंपनी वहां पे उतना जाती क्यों, मतलब वो एनसीएलटी तक पहुंचती नहीं। सॉरी Yeah, now coming to AS15 employee benefits.
इन सम केसेस कोई कंपनी ने ग्रेचुइटी का प्रोविजन नहीं किया इन द कॉन्टेक्स्ट कि मेरे एक भी एम्प्लॉय का 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ. Ideally, that cannot be the right approach. I'll have to make a provision irrespective of any of my employees have completed 5 years or not. सर आज कंप्लीट नहीं हुआ बट चांसेस है कि होगा. तो और वो जब होगा तब तो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ उसके जितना उसने 5 साल के लिए काम किया है, 7 साल जितने भी सालों के लिए काम किया है, मुझे वो सबका पैसा देना पड़ेगा उसको ग्रेचुइटी के अंदर, वो सारे इयर्स ऑफ सर्विस का पैसा देना पड़ेगा. तो आइडियली I am required to book gratuity का provision basis that. So there's one more confusion कि मेरा actual valuation कब required होता है. In case of gratuity, sir, it is always required. मैंने इंश्योरेंस का ले लिया तो भी मुझे वो तो ग्रेचुइटी का प्रोविजन तो करना ही पड़ेगा. EMI का पेमेंट कर. नहीं तो ऐसा नहीं होता. तो उसमें कैसा होता है ग्रेचुइटी का अगर आप एक्चुअल रिपोर्ट कभी भी देखोगे उसमें 2 सेक्शन होता है. एक होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कि मेरा लायबिलिटी कितना है, और एक होता है माइनस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स. तो आप जो बोल रहे हो LIC का जो अपन ने ले लिया वो मेरे प्लान एसेट्स है. बेसिकली जो मैंने वो जो मेरी फ्यूचर में जो लायबिलिटी आएगी उसके लिए मैंने LIC ले लिया. डिफरेंस बाद में कंपनी दे देती है ना. उसीलिए वो प्रोविजन बनना चाहिए कि वो आज के टाइम में वो कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस का प्रोविजन बनना चाहिए. देने किसका? या कि मेरा 60 लाख का प्रोविजन का रिक्वायरमेंट था, जबकि मेरा LIC के अंदर मेरा 55 लाख LIC का स्टेटमेंट आता है मेरा अप टू 31st ऑफ मार्च का. तो मेरा LIC के स्टेटमेंट में अप टू 31st ऑफ मार्च का 55 लाख रुपीज ही हुआ. होता है वो लोग देते रहते हैं ना, हम चलते तो बट लेकिन वो फिर हमें अप्रूवल बेसिस नहीं हुआ ना सर. फिर तो सर जिसका जो 5 साल से कम है उसका भी तो पैसा उनके पास जमा है. पैरामीटर सर बट वो अलग एग्जैक्टली सर. LIC के पैरामीटर्स अलग होते हैं और उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं. Generally, like it is maintained by LIC insurance fund, so we are not provided. Whatever is paid is paid. बट आइडियली सर वो फिर भी आपको एक्चुअल का वैल्यूएशन चाहिएगा क्योंकि आपका लायबिलिटी कितना है आपको नहीं पता है सर. वो LIC का आपको हो सकता है ना कल को अपने खुद से जेब से भी कुछ पैसा भरना आएगा अगर डिफरेंस होगा तो. पेमेंट बेसिस. बट वही तो सर पेमेंट बेसिस अलाउड नहीं है ना, उसका अप्रूवल तो करना पड़ेगा. बट सर वही तो वो उसको एज अ वायलेशन में फिर वो लोग ट्रीट करते हैं. रिगार्डिंग लीव एनकैशमेंट ऑल्सो सर, लीव एनकैशमेंट के अंदर भी काफी सारों का डाउट रहता है कि लीव एनकैशमेंट में मेरा एक्चुअल वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है. लीव एनकैशमेंट में सर इट इज रिक्वायर्ड इन केसेस जहाँ पे मतलब ऐसा है कि मतलब वो लीव एनकैश मतलब अक्यूमुलेट होती जा रही है उसकी लीव, और जिस दिन वो छोड़ के जाएगा एम्प्लॉय तब जाके मैं उसको पे करूंगा. तो मतलब वो पता नहीं वो एम्प्लॉय कब छोड़ के जाएगा, कितना टाइम, मतलब वो कितनी हो सकता है वो अगले साल लीव यूटिलाइज ही कर ले. तो वी डोंट नो दैट. तो इन दैट केस में इसलिए वो लीव एनकैशमेंट मतलब देयर मल्टीपल जजमेंट्स इन्वॉल्व. तो इन दैट केस में एक्चुअल वैल्यूएशन है. अगर ऐसा होता है कि हर साल टू साल मैं पे कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 31 मार्च तक जितनी लीव अक्यूमुलेट हुई मैंने हर एक को बुला के उतना पैसा दी, तो वो तो मैं खुद ही कैलकुलेट करके मैं उतने अमाउंट का प्रोविजन कर सकता हूँ. बट अगर ऐसा कर रहा हूँ कि मैं एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तब मैं उसको पैसा दूंगा, तो इन दैट केस मुझे एक्चुअल वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होगा. सर नाउ एक इन्वेंटरीज के अंदर कोई लोगों की इन्वेंटरी की अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर दे आल्सो इंक्लूडेड इंटरेस्ट एज अ कॉस्ट, और उसको भी साथ में इन्वेंटरी के अंदर अक्यूमुलेट कर दिया. दैट इज आल्सो अ रॉन्ग अप्रोच. इट्स अ वायलेशन आइडियली, बिकॉज मैं सिर्फ वो सारी चीजों के ऊपर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकता हूँ व्हिच टेक्स अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू डेवलप. इन सम केसेस सर इन्वेंटरी के अंदर भी होगा कॉस्ट, जैसे अगर आप बोलोगे अल्कोहल इंडस्ट्री होगी फॉर एग्जांपल, depending on so there the product takes substantial period of time to develop. So in that case में वहाँ पे borrowing cost मेरा मैं capitalize करूँ that is fine. But जिसमें भी अगर substantial period of time अगर involved है तो वहाँ पे we can capitalize that, otherwise नहीं होगा. सर बाद में एक और एक आता है कि अगर बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन वो लोग करते रहते हैं, कुछ कंपनीज में देखा गया है कि इट वाज कैपिटलाइज्ड टिल द पॉइंट इट हैज बीन पुट टू यूज. अगेन जब तक वो जिस दिन वो रेडी हो गया यूज करने के लिए, अभी आप भले ही वो 10 दिन बाद में रिबन कटिंग होगा और फिर यूज करोगे, तब तक वो 10 दिन का बोरिंग कॉस्ट उसमें कैपिटलाइज नहीं कर सकते. आपका जिस दिन रेडी हो गया था उस दिन तक ही आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो. So then in some cases what they have done
ये जो कोई कोई कंपनी ने कुछ पहले कोई 12% का डेट था उनका, नाउ दे हैव कम डाउन टू 9% डेट, फॉर दैट दे पेड सर्टेन रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस। तो उन्होंने वो रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस को भी बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्लब करके कैपिटलाइज कर दिया। दैट आल्सो कैन नॉट बी डन बिकॉज रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस जो है दे डू नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ माय बोरोइंग कॉस्ट, वो मेरे अदर कॉस्ट है। So now coming to related party disclosure, so majority आप जितनी भी आज के तारीख में जितनी अभी तक नाफरा की रिपोर्ट्स आई है, I haven't come across even a single report जिसके अंदर related party was not a point of observation for them. This is some area. This is one area where everyone should pay like a very high amount of attention. Because this is the area जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको frauds मिलने के chances हो गए, या कहीं या इसमें कहीं पे भी अगर क्या disclosure के अंदर कुछ violation हुआ तो these days even the Companies Act जो ROC वगैरह होती है, there were some cases जहाँ पे ROC ने भी penalties levy की है some companies और auditors के ऊपर just because related party का disclosure was not proper. सर अभी क्या एक कुछ में देखा गया कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अदर पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल एडवांस गिवन टू डायरेक्टर्स करके कहीं पे मैंने लिख दिया, बट मैंने पीछे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में नहीं लिखा। तो वो कंपनीज ने का बोलना ऐसा है कि मैंने रिलेटेड पार्टी में मुझे डिस्क्लोज करने को बोला गया है, जरूरी थोड़ी मैं मतलब वहां पे ही डिस्क्लोज करूँ, या व्हाट दे हैव स्टेटेड इज कि मैंने आगे डिस्क्लोज कर दिया कि मैं आई हैव रिटन कि एडवांस गिवन टू डायरेक्टर्स, बट अगेन दैट इज आल्सो नॉट इनफ। आपको डिटेल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने डिस्क्लोज की, दैट कैन नॉट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट कि नहीं मैंने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के अंदर उसको नहीं डाला। मुझे जो भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस है आई विल हैव टू पुट इट ओवर देयर ओनली। सर एक अभी एक अंडरस्टैंडिंग है कि रिलेटेड पार्टीज का जो डिस्क्लोजर जो नाम का डिस्क्लोजर होता है, those names are to be disclosed only for those parties जिनके साथ ट्रांजैक्शन हुआ। Agreed, you all are right till the point कि मैं कंट्रोल पे नहीं आता, जब जो मेरी सब्सिडरीज है, मुझे इन केस ऑफ सब्सिडरीज भले ही मेरा उसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, आई हैव टू गिव आउट देयर नेम इन द नेम्स ऑफ रिलेटेड पार्टीज। अब इवन कंपनीज लाइक सर रिलायंस जिनके 400 सब्सिडरीज हो गए, वो लोग भी वहां पे अपने सारे सब्सिडरीज का नाम वहां पे हमेशा लिखते हैं। Now another major thing, leases के अंदर जो again this is also one of the commonly found errors. For example मेरी कोई एक लीज है 20,000 रुपीज पर मंथ का लीज है, 6 साल का लीज है, हर साल मैंने क्या 2,000 रुपीज मेरा एस्केलेशन का क्लॉज है लीज के अंदर, जनरली सारे लीज के अंदर एस्केलेशन क्लॉजेज होते ही है। तो फर्स्ट ईयर 20, 22, 24 करते करते 30 तक मेरा क्या जाएगा। फर्स्ट ईयर ऑफ मेरे लीज का जब होगा तो सर मेजोरिटी कंपनीज क्या करती है कि 20,000 रुपए का एक्सपेंस बुक कर देती है, अगले साल 22,000 का करेगी, अगले साल 24,000 का करेगी। दैट इज ऑल्सो सर नॉट द करेक्ट अप्रोच। लीजेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आपको लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, जो मेरा एवरेज है दैट इज 25,000, 20, 22, 24, 26 सबका एवरेज जो मैं लेके जो मेरा 6 साल का है फॉर एग्जांपल, तो एवरेज लीज जो मैं पेमेंट करने वाला हूँ दैट इज 25,000। तो मैं हर साल 25,000 का मैं एक्सपेंस बुक करूंगा, एंड फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के अंदर 25,000 का एक्सपेंस बुक करूंगा, 5,000 लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व के अंदर क्रेडिट होते जाएगा। फिर जिस लास्ट ईयर के अंदर भी जब मैं 30,000 का पेमेंट कर रहा होगा तभी मैं 25,000 ही बुक कर रहा होगा, वो लीज इक्वलाइजेशन के उसके अंदर क्या आता जाएगा वो। सर अभी कुछ केस के अगेन अभी इसके अंदर एक आप लीवे ले सकते हो, जनरली इसकी लीजेस कैंसिलेबल होती है काफी सारी, तो बट अगेन डिपेंडिंग ऑन मतलब अगर आप लीजेस को कैंसिल, अगर आप ऐसा अज्यूम करके चलते हो कि नहीं मैं 1 साल की मेरी लीज कैंसिलेबल है, मतलब मेरा लॉकिंग पीरियड इज ओनली फॉर 1 ईयर, तो मैं उसके इसलिए मैं आगे का मैं लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व नहीं बनाता। बट जनरली एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो अपन बोलते हैं, बेसिस दैट कॉन्सेप्ट वी शुड आइडियली क्रिएट अ लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व। Company doesn't agree for that actually. They say we have locked in a 1 year only, so the lease period is 5 years. सर बट देन इन दैट केस आप कंपनी को काउंटर ये चीजों से कर सकते हो कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स होते हैं, आप डेप्रिसिएशन भी फिर 1 साल पे ही कर रहे हो क्या? आइडियली जो मेरा फिर लीज होल्ड इंप्रूवमेंट जो होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर, अगर आप बोल रहे हो 1 साल में छोड़ने वाले हो, तो जो भी इमूवेबल फर्नीचर होगा या जो भी आपने सिविल वर्क करवाया होगा, कुछ भी करवाया होगा, आप क्या उसको भी 1 साल के अंदर डेप्रिशिएट कर रहे हो? आप जो भी अजम्पशन ले रहे हो दैट हैज टू बी सेम अक्रॉस एवरीवेयर, that they can argue, that is what I'm saying। और मतलब वो चीजों के अंदर मतलब ठीक है वो you can do by that way also, but then again आपको मतलब वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो सारे assumption फिर सब जगह सेम चल रहे हैं। Now earnings per share,
काफी सारी कंपनी अगेन इवन दिस वाज ऑब्जर्व्ड कि जो अर्निंग्स पर शेयर है दे हैव बीन डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ नोट्स पीछे, बट एज पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड कि इट शुड बी डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ माय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर मैंने फेस पे नहीं कर रहा हूं तो इट इज अ वायलेशन ऑफ माय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर ये जो अपन ने डिस्कस किया था इनिशियली रिगार्डिंग मेरा फिट फॉर कंसोलिडेशन का जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो अपन बोले थे सब्सिडरीज की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग हो सकती है, आईएफआरएस के बेसिस पे हो सकता है सब्सिडरी, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे हूँ, वो तो चलो फॉरेन के केस में हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि मैं फॉर एग्जांपल एसएलएम पे डेप्रिसिएशन करता हूँ और मेरी सब्सिडरी डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करती है, तो दोनों का अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है। तो इन दैट केस जब मैं कंसोलिडेशन करता हूँ आई हैव टू पे अटेंशन कि मेरा जो नीचे सब्सिडरी में कंसोलिडेट कर रहा हूँ even that is on the same line of accounting policy that has been followed by the holding company। तो मेरे जो सब्सिडरी के जो ऑडिटेड नंबर्स है हो सकता है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हो गए और वो फिट फॉर कंसोलिडेशन ऑडिट रिपोर्ट जो अपन बात कर रहे थे तो उसके अंदर वो अलग हुआ। सर ये चीज के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देयर इज अ कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस करके, उनकी होल्डिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट होता है वो पूरा अलग होता है, इंश्योरेंस कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फॉर्मेट होता है वो पूरा अलग होता है। तो व्हाट दे डू ओवर देयर इज कि एज वो लोग जो एक बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑडिटर्स को कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम को कंसोलिडेशन पर्पस के लिए दे प्रिपेयर अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर वो लोग ये सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल उधर लाइफ ऑफ एसेट्स वगैरह कुछ अगर अलग चल रही है तो ये सारी चीजों का एडजस्टमेंट करके देन दे सेंड इट टू देम, और मतलब वो नंबर्स को वो लोग कंसोलिडेट करते हैं और वो नंबर्स के जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसका एक ऑडिटर्स भी वाकई एक सेपरेट एक रिपोर्ट इशू करते हैं, फिट फॉर कंसोलिडेशन ऑडिट रिपोर्ट। सो उसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाती है। Sir, most of the time their accounting is calendar year. हाँ सर, तो उसके इन दैट केस सर वो आपको कंपनी एक्ट के अंदर देयर इज वन अलाउड है कि वो 6 महीने का पीरियड का अगर पहले तक का होता है तो आपको चलता है। अब बस खाली वो जो मेजर जो आपको 3 महीने के कुछ एडजस्टमेंट जो देना है वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट दे दीजिए ताकि वो नंबर्स आपके रिलेट, जैसे आपका यहाँ का Adjustment कौन करेगा? कंपनी करके देगी। कंपनी करके देगी सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा कंपनी करके देगी। आइडियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कंपनी का रिस्पांसिबिलिटी, आइडियली दैट इज द केस। नाउ डेफर्ड टैक्स के अंदर इट वाज ऑब्जर्व काफी सारों ने क्या किया था कि ऑन डेफर्ड टैक्स अपने को वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कि डेफर्ड टैक्स वाज क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, सो ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन माय डब्ल्यूडीवी, ऑन अकाउंट ऑफ मेरा कुछ प्रोविजंस का है। तो कुछ कंपनी ने क्या किया 2-3 तो डिस्क्लोज कर दिया और बाकी का अदर्स करके डाल दिया। आइडियली डेफर्ड टैक्स के अंदर अदर्स करके होना नहीं चाहिए क्योंकि डेफर्ड टैक्स बनता गिन के 4-5 चीजों के ऊपर है, तो आपको जो जो चीजों की वजह से डेफर्ड टैक्स आपका है यू हैव टू डिस्क्लोज इट सेपरेटली। So then again, deferred tax वाला consolidated balance sheet में बनेगा ना? sorry, Deferred tax का नहीं स्टैंडर्ड में भी होगा ना सर डेफर्ड टैक्स। Standalone में क्यों? यस डेफर्ड टैक्स तो मतलब मेरा जो डिफरेंस इन मेरा बुक्स का करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स का मतलब मेरा जैसे बुक्स के अंदर मेरा डब्ल्यूडीवी अलग चल रहा है और मेरा का ये नीचे इनकम टैक्स के अंदर मेरा डब्ल्यूडीवी अलग चल रहा है तो उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स आता है। डेफर्ड टैक्स एसेट है लायबिलिटी सर कुछ केसेस के अंदर सेपरेटली दिखा जाता है, एसेट भी दिखा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी दिखा है। आइडियली टिल द पॉइंट कि आपको डेफर्ड टैक्स दोनों आपका मतलब सेम ही, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट के पर्टेनिंग ही है तो आप नेट करके आप हमेशा नेट अमाउंट दिखाओगे। कुछ कंसोलिडेशन के केसेस में आप नेट नहीं करोगे, रीजन बीइंग कि वो कंपनी एक कंपनी में डेफर्ड टैक्स एसेट है एक कंपनी में लायबिलिटी है, आप वो एसेट को लायबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर नहीं पाओगे फ्यूचर के अंदर, तो उसको आप सेपरेटली दिखाना का कोई वो नहीं बनता। तो फिर बाद में काफी लोग ये लिखना मिस आउट कर देते हैं डेफर्ड टैक्स के केस के अंदर, जहां पे एसेट बनाते हैं डेफर्ड टैक्स का, तो वहां पे एक दिस पॉइंट शुड ऑलवेज बी देयर कि देयर इज सर्टेनिटी कि सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी देयर टू क्लेम दोस डेफर्ड टैक्स एसेट। सर कंटिन्यूअसली लॉसेस ही हो रहे हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस ही चल रहे हैं कंपनी के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल यस बैंक के केस के अंदर जब यस बैंक का ये पूरा फियास्को हुआ था, यस बैंक का जो पूरा रीस्ट्रक्चरिंग हुआ ये सब पूरा, तो जितने डेफर्ड टैक्स एसेट्स थे द कंपनी हैड रिटन ऑफ ऑल द डेफर्ड टैक्स एसेट्स आल्सो, क्योंकि इतने ज्यादा अक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए सर कि वो अभी उतने प्रॉफिट्स में वो चीजों को कवर अप करना पता नहीं कब कर पाएंगे। सो ड्यू टू दैट रीजन दे हैड जितना भी डेफर्ड टैक्स एसेट था दे हैड रिटन इट ऑफ। सर एक इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर देयर इज वन मेजर एक काफी सारों को लगता है कि मैं इनकम टैक्स के अंदर आई विल नॉट क्रिएट एनी, सॉरी
इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आई कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग। जब भी कोई नया प्लान डालता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, तो मेरा जब तक प्लान चालू नहीं हो जाता तब तक के मेरे जितने जो खर्चे होते हैं मैं सारे खर्चों को कैपिटलाइज करते जाते हैं। नाउ दैट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, मैं कुछ भी होगा, भले मैंने प्लान पे एक आदमी लाया जो भी किया, जितने भी है मैं सारे खर्चों को मैं अक्यूमुलेट करके उसमें कैपिटलाइज करते जाता हूँ, और तब तक मैं उसका डेप्रिसिएशन चालू नहीं करता जब तक प्लांट ऑपरेशनल नहीं हो जाता। सर वो अप्रोच भी गलत है आइडियली, क्योंकि आपको खाली वो खर्चे कैपिटलाइज करने हैं जो आपका एक्चुअल एसेट का डेफिनेशन मीट करेंगे, या वो एसेट के रिलेटेड जो खर्चे हो रहे हैं डायरेक्टली। आप अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कोई एक आपने एक प्लांट के ऊपर एक प्लांट हेड रख लिया, हु इज ना आइडियली प्लांट हेड डज नॉट, जो प्लांट हेड अभी प्लांट बन रहा है तो वो प्लांट का भी सब बनाने के लिए जो भी वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसकी सैलरी मे नॉट शुड नॉट बी कैपिटलाइज पूरा 100%, क्योंकि उसने थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का भी काम कर रहा है। मैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम होगा बेटा, मैं वो सारे खर्चों को मैं हमेशा सेपरेटली एक्सपेंस आउट वो सालों में ही करते जाऊंगा, एंड आई वोंट कैपिटलाइज इट टिल द पॉइंट द प्लांट गेट्स ऑपरेशनल। ये अगेन सर वो जो सेल्स रिटर्न की जो अपन बात कर रहे थे कि सेल्स रिटर्न को कुछ आइडियली एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड कि आप अगर आपका कोई कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल भले कोई छोटा एक दुकान ही क्यों ना हो, कोई कपड़े का किसी का कोई दुकान है, बट उसके अंदर उसको पता है कि हमेशा कस्टमर आते हैं, 2% हमेशा रिटर्न आता ही है मेरा माल, तो एक महीने के अंदर जो भी मार्च में मैं जितना सेल करूंगा अप्रैल में उसका 2% मेरे को रिटर्न आएगा। तो इन दैट केस मुझे हमेशा पहले से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2% से प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। सर एक अनदर मेजर एरर दैट वाज ऑब्जर्व्ड वाज प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस मेरे जो है कुछ कंपनीज ने शॉर्ट टर्म प्रोविजन या लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखा दिए थे। आइडियली दैट कैन नॉट बी द केस। आपके प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन में वो चीज आएगी जैसे आपका ग्रेचुइटी हो गया, लीव एनकैशमेंट की चीजें हो गई, वो सारी चीजें, ये जहाँ पे सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन इन्वॉल्व हो। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस तो सर वो चीज है कि जो खर्चे मतलब बिल मेरा अप्रैल में आया लेकिन क्या एक्सपेंस पर्टेनिंग है मार्च का, तो वो चीजें मेरी इसके अंदर पार्ट नहीं फॉर्म करेगी। ये तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस के अंदर काफी लोग एक ये भी एक गलती करते हैं कि वो अदर एक्सपेंसेस पेबल के अंदर करके एक अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर दिखा देते हैं। आइडियली सर वो भी रॉन्ग है। आपको जितनी भी चीजें जो मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है वो सारी चीजें मुझे ट्रेड पेबल्स के अंदर लेके जानी। तो मैं अगर कुछ मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर मैं कोई भले कोई सर्विस भी मैंने ली हो या कुछ भी किया हो, वो सारी चीजें मेरे ट्रेड पेबल्स को पार्ट फॉर्म करेगी एंड इट विल नॉट बी शोन सेपरेटली एज अदर एक्सपेंस पेबल। So then some of the common errors, but actually जैसे नेम ऑफ द फाइनेंशियल जो कंपनी का जो नाम है वो नाम ही गलत लिखा। अभी ये रीजन इसके क्या होते हैं जनरली कि XYZ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, एस है, तो वो काफी बार वो एस लिखना हो रहा है। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि एमसीए के जो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स में या पैन वगैरह पे जो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स हो वहाँ पे जो एग्जैक्ट नाम है टू रेप्लिकेट दैट नेम ओनली। कितनी बार होता है डैश आ जाता है, कहीं पे कुछ आता है, तो अगर आप वो डैश या वो सब भी अगर नहीं कर रहे हो प्रॉपर्ली तो इवन दैट इज अ वायलेशन। So provision for expenses is not allowed. Provision for expenses you can make in this company action. I do not think. Provision for नहीं अलाउड है एक्सपेंसेस का प्रोविजन करना, बट आप उसको क्लब उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेड पेमेंट्स में करो अगर मतलब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के रिलेटेड है, तो अगर नहीं है तो बाद में आप उसको सेपरेटली आप कहीं पे दिखा सकते। देन या फिर हमने काफी सारे केसेस में ऑब्जर्व था कि जैसे डेफर्ड टैक्स में मूवमेंट आता है, क्लोजिंग में इतना था, ओपनिंग में इतना था, और फिर हमें नेट इम्पैक्ट इतना हुआ, बट लेकिन वो मूवमेंट्स मेरे आगे पीएनएल एक पार्ट आगे क्या रिलेट कर पा रहा हूँ बट दूसरा पार्ट में आगे रिलेट नहीं, मतलब वो टैली नहीं हो रहा है। फिर नोट रेफरेंसिंग अगेन सर रिगार्डिंग सीएसआर इंटरप्रिटेशन एक काफी एक मिस इंटरप्रिटेशन है कि फॉर एग्जांपल मैंने 31 मार्च को क्या कोई एक XYZ का एनजीओ था, तो वो मैंने वो एनजीओ को कुछ पैसा डोनेट कर दिया जो मेरा 22-23 का फॉर एग्जांपल आई वाज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ 1 करोड़ रुपीज, और मैंने फॉर एग्जांपल मार्च महीने में पूर्वी मैडम को कोई एक एनजीओ मैंने उधर वो दे दिया वहां पे, और तो क्या मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई वहां पे? नहीं, आइडियली अगेन सीएसआर के अंदर क्या बोलते हैं कि वो आपका वो अमाउंट स्पेंड हो जाना चाहिए। आपके पास पूरा साल पड़ा था खर्चा करने के लिए, वो आपने इतना जाके लेट किया, दैट इज नॉट कंपनी दैट का प्रॉब्लम। आपको जब भी खर्चा आपका वो पैसा आगे एनजीओ का भी आगे स्पेंड हो जाना चाहिए।
इन दैट केस एज एन ऑडिटर सर आप क्या कर सकते हो कि आपको नीचे उनसे एक सर्टिफिकेट ले सकते हो कि दैट अमाउंट दैट वाज कंट्रीब्यूटेड हैज बीन स्पेंट. यस सर. Reimbursement of expenses The NGO has already spent some money. And that can be sir. That can be, उसमें कोई problem. reimbursing March में sir. वो ठीक है ना, वो अमाउंट स्पेंड हो गया ना वो हाँ, पर्टिकुलर. Reduce मालूम पड़ गया. एग्जैक्टली They've आपने already spent during the year and then you have It is to fine. reimburse. Yes, yes, yes. They can give the certificate also that it is already spent. Yeah, yeah, they can. Okay. तो भाई अपने को as an auditor it is our responsibility कि अपन वो सर्टिफिकेट ले ले कि वो नीचे जो एनजीओ को अगर किसी को दिया है तो कि उन्होंने वो अमाउंट जो अपन ने कंट्रीब्यूट किया था वो खर्चा हो गया है. अगर खाली अपन ने एनजीओ को दे दिया दैट इज नॉट इनफ टू से कि अपना खर्चा हो गया. Current year we are contributing to armed forces that flag and all that. वापस गवर्नमेंट के केसेस के अंदर सर इट्स गवर्नमेंट के केसेस में इट इज ओके इफ यू डोंट टेक दैट. कि गवर्नमेंट तो की भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया ये सब हो गया वहाँ पे नहीं होगा चलेगा सर. वापस इट्स नॉट अ प्रॉब्लम सर. क्योंकि आइडियली अगर आपका अनस्पेंड भी रहा ना, आपका अगर अमाउंट अनस्पेंड रहता है तो अनस्पेंड सीएसआर आपको विद इन 30 डेज ये सब फंड्स में ही डिपॉजिट करना होता है. तो आप फिर बाद में मतलब ठीक है उसमें कौन सा आप फिर ये लेने वाले हैं अपन एंड यूज. Then sir, again grammatical errors and all of those were some things that were observed. So regarding Companies Act, some common errors that were observed. कि regarding the estimate of life जो मेरे assets की जो लेते हैं वो Schedule 2 से अलग चलेगी. क्या वो अलग चल सकती है? Yes. चल सकती है सर. It can go, but मुझे in that case एक technical engineer का certificate होना चाहिए. मैं अगर plant and machinery की मैं life को अलग पकड़ रहा हूँ तो मुझे वो सो अगर अलग चल रही होती है तो इन दैट केस कंपनी को सेपरेटली अपने अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर डिस्क्लोज करना होता है कि दैट दीज आर द लाइव्स कंसीडर्ड फॉर माय फिक्स्ड एसेट्स. सो देन अगेन एक अनदर थिंग सर, एक कंपनी है ए बी, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी. ए कंपनी के अंदर सिर्फ एक शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉइज जैसे 8 घंटे मैन्युफैक्चरिंग होती है उतना ही है. बी कंपनी के अंदर 2 शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉइज है 16 घंटे होती है. सी कंपनी के अंदर 24 आवर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है. बट फिर भी क्या मैं डेप्रिसिएशन का लाइफ तो वहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 2 के अंदर. तो क्या मैं 15 इयर्स जो वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का लाइफ है तो मैं 15 इयर्स तीनों कंपनी में सेम अप्लाई करूंगा? नहीं. The schedule 2 specifically states कि in case अगर 2 shift of employees है तो 150% of my depreciation should be there. And अगर 3 shift of employees है that is 24 hours अगर कंपनी चल रही है तो फिर 200% of my depreciation I'll have to take in that particular financial. हो सकता है एक साल के अंदर ट्रिपल शिफ्ट था, नेक्स्ट ईयर से मेरा सिर्फ सिंगल शिफ्ट है, वो एक साल के अंदर मैंने 200% दिया, उसके प्रीवियस ईयर के अंदर वो सिंगल शिफ्ट के अंदर चलते हैं. सर एक अनदर मेजर की इंटेंजिबल एसेट्स का शेड्यूल 2 के अंदर कोई लाइफ प्रेस्क्राइब नहीं है. तो काफी का अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि सिंस लाइफ प्रेस्क्राइब नहीं है तो मतलब इंटेंजिबल्स का जैसे ट्रेडमार्क हो गया तो ट्रेडमार्क का कोई लाइफ ही नहीं होता तो लोग डेप्रिशिएट ही नहीं करते. बट आइडियली सर ट्रेडमार्क का भी लाइफ होता है वो 10 मतलब आप बहुत सारे क्या सो अगर आपका अगर लाइफ अगर प्रेस्क्राइब नहीं है तो वो लोग, बट आइडियली ट्रेडमार्क्स भी हो गए तो ट्रेडमार्क भी आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का भी कभी ना कभी तो लाइफ उसका ट्रेडमार्क का खत्म होता है. सो और लोगों का बोलना है कि शेड्यूल 2 के अंदर प्रेस्क्राइब नहीं है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जब आप जाओगे AS 26 में सर एग्जैक्टली दे हैवंट मैंडेटेड दिस बट दे हैव स्टेटेड दैट इट जनरली शुड नॉट बी मोर देन 10 इयर्स. तो आइडियली अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको जैसे ट्रेडमार्क जैसी चीजें हो गई या ये सारी चीजें जहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है कि लाइफ कितनी होगी तो इन दैट केस अपन को एटलीस्ट 10 इयर्स पकड़ के 10 इयर्स पे डेप्रिशिएट करना चाहिए. Then another major impact was कि major error was कि shares मैंने disclose किए but I haven't disclosed the movement of shares. मतलब opening में कितना था, during the fresh issue कितना हुआ, buyback कितना किया, closing कितना था, that was not disclosed. Then sir this is again a blunder only कि reserves and surplus का जो debit balance था that has been taken asset side के अंदर but technically that cannot be the case. सर फिर काफी सारे कंपनीज के अंदर ये जो अपना जो शेड्यूल 3 बोलता है कि आप जो शेयर कैपिटल का जहाँ पे देते हो, शेयर कैपिटल का जो नोट देते हो, जो शेयर जहाँ पे आप ये रिकंसिलेशन और ये सब देते हो वहाँ पे आपको ये भी देना होता है कि वो शेयर्स के आपके क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वो शेयर्स के आपको वोटिंग राइट्स के, मैं आपको बेसिकली एक वो शेयर्स के फीचर्स क्या है आपको डिस्क्लोज करना होता है. तो कुछ कंपनीज वो भी डिस्क्लोज करना रह जाता है तो आइडियली इवन दैट शुड बी डिस्क्लोज. So then एक मेजर एक अमेंडमेंट हुआ था शेड्यूल 3 के अंदर लास्ट ईयर की करंट मैच्योरिटीज ऑफ मेरा जो लॉन्ग टर्म डेट है
मेरा जो लॉन्ग टर्म डेट होता है मोर देन 12 महीने का जो डेट होता है उसका, लेकिन जो मेरे को अगले 12 महीने के अंदर जो मेरी ईएमआईज है उसको अपन करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट दिखाते हैं। उसको आइडियली अपन हमेशा से डिस्क्लोज करते आ रहे थे अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर, बट नाउ इट इज रिक्वायर्ड कि वी हैव टू डिस्क्लोज दैट इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड नॉट अदर करंट लाइबिलिटीज। तो मेरी जो भी करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट होगा दैट हैज टू फॉर्म पार्ट ऑफ माय शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। So then again another case that was observed was कि मेरा जो कि मैंने फॉर एग्जांपल करंट नॉन करंट मैंने जो क्लासिफिकेशन मूव किया, या मैं हो सकता है कुछ रीग्रुपिंग वगैरह करता हूँ, मैं लास्ट ईयर को नॉन करंट में था, करंट ईयर वो अभी करंट में आ गया। तो कोई केस में अगेन ये भी एक ब्लंडर ऑब्जर्व किया था कि वो जो लास्ट ईयर का जो नॉन करंट था उसको भी वापस करंट में ले लिया प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिव फिगर्स के अंदर आइडियली, लेकिन लास्ट ईयर तो वो नॉन करंट ही था तो वो तो ऊपर ही रहेगा, खाली आपका करंट ईयर के अंदर वो चीज रीग्रुप हो जाएगी। Yeah. So in case of in some cases it was observed कि companies were giving out loans, but they were not charging any interest on those loans. Ideally, even that is a violation of section अपना 186. जब अपन कारो का रिपोर्ट देते हैं उसके अंदर एक पॉइंट भी आता है कंप्लायंस विद सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ ये अपना कंपनीज एक्ट। So whenever this is the case, we have to report it. Prevalent market rate क्या? What do you assume? So the prevalent market rate जो minimum interest at least उतना चार्ज होना चाहिए जो नियर बाय टर्म का गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज का रेट चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 3 साल का लोन दिया है एंड 3 साल तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का 3 साल का फॉर एग्जांपल क्या रेट चल रहा है तभी वो रेट आपका मिनिमम एटलीस्ट दैट शुड बी द रेट। सो काफी लोगों का एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि मेरी होली ओन सब्सिडी है तो मैं उसको तो इंटरेस्ट फ्री लोन दे ही सकता हूँ। आइडियली नहीं सर, उसके भी कोई ऐसा सेपरेट उसमें बार नहीं किया हुआ है कि मैं होली ओन सब्सिडीज को भी इंटरेस्ट फ्री लोन दे पाऊँ। Yeah, I saw a case where the holding company has given a loan to a subsidiary in Bhutan construction, and the other subsidiary company is not doing well in a particular project. So the accounting policy is that the interest will be recognized only when the projects are successfully completed. तो इन दैट केस क्या होगा, वो नीचे वाली कंपनी है ना इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करती जाएगी, ऊपर वाली कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेनिटी, क्योंकि वो पैसा आएगा वो चीज की सर्टेनिटी नहीं आज के टाइम, इसलिए मैं वो चीज रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। तो वो एक मिसमैच हो तभी दोनों में चलेगा। कंसोलिडेशन जब होगा लेकिन तब वो कंसोलिडेशन में वो जो इम्पैक्ट जो उन्होंने दिया होगा वो रिवर्स हो जाएगा, वो इम्पैक्ट कंसोलिडेशन में आएगा ही नहीं आपका। वही से जो ट्रेड पेबल्स का जो अपन बात कर रहे थे, जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो भी होता है, एनी गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज दैट आई रिसीव, that will form part of my trade payables and not any not as other expense payable or something like that in other current liabilities. So then again कुछ केस में it was observed कि जो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का शेड्यूल होता है उसी के अंदर एक गुडविल करके लिख के आ जाता है। Ideally those two things are separate. तो मेरा tangible assets का एक जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक सेपरेटली दिखेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स सेपरेटली दिखेंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी सर इनफैक्ट मेरे जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड में अगर कुछ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो मेरा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट करके एक सेपरेट सेक्शन दिखेगा एंड इट वोंट फॉर्म पार्ट ऑफ माय कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ कमिंग टू इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स का जो हेड होता है, कोई केसेस में इट वाज ऑब्जर्व कि एलएलपीज का जो इन्वेस्टमेंट था वो भी उन्होंने वहां पे लिख दिया था, मतलब इन वो वाले हेड के अंडर डिस्क्लोज कर दिया था, बट आइडियली दैट आल्सो कैन नॉट बी देयर बिकॉज़ एलएलपीज आर अ सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट एंड दे आर नॉट पार्टनरशिप फर्म। So then traded goods included finished goods, goods in transit जो अपन बात कर रहे थे that has to be disclosed separately. वो मेरे finished goods का पार्ट फॉर्म नहीं करेंगे, मुझे हमेशा वो finished goods in transit और रॉ मटेरियल इन ट्रांजिट। सर कुछ केस के अंदर क्या होता है ना कि जो परचेजेस होते हैं, अपन ने सेल्स कट ऑफ की बात की बट परचेज कट ऑफ नाम की भी सर एक चीज होती है, उसके अंदर क्या होता है कि मैंने जो परचेजेस किया भले ही हो सकता है कि मैंने माल वहां पे बिल ऑफ एंट्री मैंने करवा लिया और लेकिन वहां से मेरा फैक्ट्री है दिल्ली के अंदर, तो वहां से दिल्ली फैक्ट्री पे पहुंचते वो 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को पहुंचा, बट स्टिल सर मैं उसको भी मेरे को क्योंकि उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पे आ चुका है, अभी वहां से कलेक्ट करके लाना वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उसको भी रॉ मटेरियल्स एंड ट्रांजिट करके मैं सेपरेटली उसको दिखाऊंगा। So we don't have to check just sales cutoff, but we'll have to check separately purchase के लिए भी the same procedures. So then with regards to aging of trade receivables and payables, please. So we suppose that the purchase returns का option भी है हमारे पास में because of policy 7 days or 10 days. Then how you in that case sir it is fine, मतलब वो आप क्योंकि आपका मतलब वो रिस्क एंड रिवॉर्ड पूरा टोटली आपके ऊपर ट्रांसफर हुआ नहीं, तो सर बड़ी कंपनीज के अंदर और भी मतलब जैसे अभी इफ यू गो टू एनी एमएनसीज वगैरह ये सब जो होता है ना, उनके अंदर जब गुड्स फैक्ट्री से इनवर्ड हो जाते हैं ना
तभी वो गुड्स बुक नहीं होते। उसके बाद में उनका क्वालिटी सेंटर होता है, इंस्पेक्शन सेंटर, वहां से होके उसके बाद में उनका गुड रिसीट नोट बनता है। CRN जो होता है बुक्स के अंदर, वो उसके बाद में होता है। तो मेरा लाइबिलिटी तब, जब मैंने गुड्स अप्रूव कर दिए टेक्निकली, जब तक मैंने गुड्स अप्रूव ही नहीं किए तब तक मेरी लाइबिलिटी उसके ऊपर आई नहीं है, मैं वापस से उनको दे सकता हूँ। तो इन दैट केस इट इज ओके। उसके बाद GRM बनेगा। उसके बाद GRM बनेगा, यस। एंड या ट्रेडिशनल ट्रेड पेमेंट के अंदर क्या देखा जाता है कि काफी लोग जो एजिंग बनाते हैं वो एज पर इनवॉइस डेट बना देते हैं, बट आइडियली इवन दैट एजिंग हैज टू बी फ्रॉम द ड्यू डेट एंड नॉट द इनवॉइस डेट। But I have a question here. Yeah, Investment in LLP के case में, if I have invested into a company, but that company gets converted into LLP, तो वो अपना जो contribution है that gets reduced, क्योंकि वो मतलब I bought the shares at say 1 CR, अभी उसका जो partnership LLP बन गया, तो अपना capital contribution is say only 50 lakh. तो अपनी बुक्स में उसका जो अमाउंट है वो चेंज होएगा या नहीं? Can I ask what happened to the balance 50 lakhs? मतलब क्या कुछ accumulated losses? Accumulated losses probably. Ideally मुझे उसको प्रोवाइड तभी कर देना चाहिए था। नहीं किया मैं मान लो। तो मतलब अभी आज के तारीख के अंदर मैं उतना प्रोविजन कर दूं। हाँ, पर अपनी बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे that will be equal to what that person is showing in the capital balance. Exactly. आज के तारीख में तो it has to match. फिर LHB के अंदर तो that it has to match. तो LLP के अंदर तो वो सारे कंपनीज के केस के अंदर There is a fixed capital and there is a fluctuating capital. LLP के केस के अंदर तो ना। तो we match. ठीक है। और अगर ये मैचिंग करते हैं से पुराना मिस्ड आउट, तो वो साल के अंदर वो पर्टिकुलर ईयर के अंदर अभी एक बार के लिए एक्सपेंस आउट करके दें। then we can work. बिकॉज आप इतने टाइम तक आप बोल सकते हो कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, तो आइडियली मैंने तभी किया नहीं, क्योंकि मतलब बट नाउ सिंस इट हैज मतलब हो ही गया, एक सब्सटेंशियली पूरा प्रोसेस ही हो गया है, एंटिटी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, मैं ये सब बोल के एक बार के लिए उसको 50 लाख पे ला दूंगा, देन इट्स फाइन। So then trade receivables included receivable from sale of property, plant equipment, investments that has to be disclosed separately, and that cannot form part of my trade receivables. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. I would like to thank Abhinav on behalf of the full JB Nagar study group. You have been very crisp and clear, very detailed presentation. Thank you for highlighting all those common errors and mistakes that we usually come across, and most of us do. So I think it's provided us with the ready to use checklist. After finalization, we can just go through the fadafat, all the slides and see whether we have covered everything. So thank you so much for all of this. Thank you all the members who come and attended. Yes, sir. Shared with us and how soon you can share it. I'll share it with By tomorrow, along with the recording, I'll share. Monday को changes कर लेंगे ना. Not tomorrow, sir. Monday. Monday we'll be working. Monday I'll share. You are hold now. Yeah, Monday, because I'll have to check the recording and everything. What I will do is I'll WhatsApp you the PDF only, and you can put it in the group or something. Yeah, yeah. So thank you all for coming and attending, for making it interactive. And now we can proceed for a break. After snacks, we'll gather together for the second session. Thank you. Thank you everyone. It was a pleasure addressing you. Thanks for joining. Thank you very much. Very interesting there. Snacks in the next room.